વિચારીને પરિચય આપવો પડે. એટલે મને જે હૃદયથી લાગણી ઉઠે છે અને થોડુંક જે મારી પાસે લખેલું છે બંને કરીને હું કમ્બાઈન કરીને આપનો પરિચય કદાચ તમારા કેટલા લોકોને આમાંથી જરૂર હશે મને ખબર નથી, પણ એક મારા તરફથી મારે યોગ્ય લાગે કે મારે કરવું જોઈએ. જે પણ નવા મિત્રો છે એમના માટે ખાસ લાયન્સ ક્લબ ફેમિના ગાંધીનગર 1 વર્ષ જૂની સંસ્થા છે. હજુ આજ વર્ષે એનો જન્મ થયો છે અને કોરોના કાળમાં એને વેન્ટિલેટર કે ઓક્સિજનના ઉપયોગ વગર 1 વર્ષ સારી રીતે સંપૂર્ણ કર્યું છે. એમાંના અમારા બધા જ મેમ્બર્સ તરફથી સુરેશ સરનો અને આ બીજા નવા મિત્રોનું સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. સુરેશ સરને કદાચ ઓળખ્યા કેટલા 25 વર્ષો થયા હશે જ્યારથી એમની સાથે પરિચય છે. પણ આજે એમને એક વ્યક્તિ તરીકે શબ્દોમાં આલેખવાના છે, શબ્દોમાં એમને મૂકવાનો છે એમના વ્યક્તિત્વને. એટલે જે મને અંદરથી સૂઝ્યું છે એવું જણાવું કે આજે આપણે જેનો પરિચય કેળવવાનો છે એ વ્યક્તિ એક ઉમદા એન્જિનિયર તો છે જ, એક અત્યંત નિષ્ઠાવાન એવા પર્યાવરણવિદ પણ છે, બેસ્ટ ઓફ ધી બેસ્ટ વક્તા છે, ઉમદા ટ્રેનર છે, પ્રેમાળ ફેમિલી મેન અને દોસ્ત છે, અને સૌથી સાચી વાત તો કહું કે સૌથી સાચા અને હસમુખા માનવી છે. મેનેજમેન્ટ ટ્રેનર તરીકે આપણે ખાલી ક્લાસરૂમ ટ્રેનિંગ નહીં પણ ખુલ્લા આકાશ તળે પર્વતોના ટ્રેકમાં આઉટબાઉન્ડ ટ્રેનિંગના કરાવી અને ઘણા લોકોને એક નજર નવી આપી છે, જીવવાની દ્રષ્ટિકોણ આપ્યો છે કે આ પણ એક જીવન છે. અને ઘણા લોકો એમના ઊંધે કાન પ્રેમમાં પડીને બસ એમને ગુરુપદે હંમેશા માનીને એક ધ્યેય પ્રમાણે જીવે છે. એમાંના અમે પણ એક છીએ. દેશભક્તિ એમની રગોમાં વહે છે. ઉપલબ્ધિ છે એમનું મિશન જય હિન્દ, યુવાનોને નેતૃત્વ, સૈનિકો માટેની પ્રવૃત્તિઓ અને દેશના તમામ કાયદા અને ફરજોનું પાલન એ પોતાની જવાબદારી સમજે છે એક નાગરિક તરીકે, અને હંમેશા એ નિભાવે છે અને બીજા પાસે અપેક્ષા રાખે છે કે આપણે એક નાગરિક તરીકેની ફરજ પહેલા બજાવીએ. જંગલો, નદીઓ, પર્વતો ખોદવાના શોખીન આપ અરવલ્લી અને હિમાલયમાં સતત ટ્રેકિંગ કરીને એને માણો છો, અને એમનું સપનું પણ છે કે મને ક્યારેક હિમાલયની પાસે જ સમગ્ર મારું બાકીનું જીવન વ્યતીત થાય, એક એમનું એવું એક સ્વપ્ન પણ છે. અને એ અવારનવાર વર્ષમાં જેટલી વાર તક મળે એટલી વાર હિમાલયમાં પોતાની સમયને ત્યાં ગાળવાનું ઈચ્છા રાખે છે. આ જીવન વિદ્યાર્થી એવા તેઓએ ભગવદ્ ગીતા, ઉપનિષદનો ગહન અભ્યાસ કર્યો છે, અને ન્યુરો લિંગ્વિસ્ટિક પ્રોગ્રામ એટલે કે NLP ને પણ તેમણે આત્મસાત કર્યું છે, અને ખૂબ સરસ રીતે સરળ રીતે લોકો સુધી પહોંચાડ્યું છે. સારી વાતો માત્ર કરીને નહીં પણ જીવનમાં પ્રેક્ટિસ કરીને એ વસ્તુ ઉતારીને એમણે માત્ર આંબીએ ઊંચા આકાશને પુસ્તક લખીને નહીં પણ જીવનને ઊંચાઈ આપીને એમણે આ સાર્થક કર્યું છે. પક્ષી વિશે વાંચીને નહીં પણ પક્ષીનું ગાન સાંભળીને અને તેમાં રહેલી એની મધુરમ અને એને વાલપની ખોજ કરી છે. આમ એકેડેમિક કેરિયરની રીતે વાત કરીએ તો સિવિલ એન્જિનિયરમાં ગ્રેજ્યુએશન, એન્વાયરમેન્ટલ એન્જિનિયરિંગમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન અને હ્યુમન રિસોર્સિસમાં MBA કરેલ છે. એ સાથે તેમણે સાયકોલોજી, સોશિયોલોજી અને ઓન્ટોલોજી પણ હૃદયસ્થ કર્યું છે. તેઓ રોક ક્લાઇમ્બિંગ, સ્કીઇંગ, બેઝિક એડવાન્સ કોર્સ કરીને ભારતમાં વિવિધ સ્થાનો પર તેમણે આ બધી જ ઘણા બધા સેમિનાર્સ એમણે વર્કશોપ્સ એમણે બધા માટે કર્યા છે, ઉત્સુકો માટે. આ ઉપરાંત તેમણે ગ્રાન્ડ કેનિયન ઓફ કોલોરાડો USA અને કોનિબર્ગ ઓસ્ટ્રેલિયામાં પણ ટ્રેકિંગનો એડવેન્ચર કોર્સ કરેલ. દુનિયાના 14થી વધારે દેશોમાં તેઓ ફર્યા છે, અને ટ્રેનિંગ સ્કિલના માધ્યમથી માનવતા ફેલાવી છે. 200થી વધારે કોર્પોરેટ અને NGO સંસ્થા સાથે તેઓ સંકળાયેલ છે. તેઓ યુનિવર્સલ પીસ ફેડરેશનનો વર્ષ 2000માં યુનિવર્સલ પીસ એવોર્ડ તથા રોટરી ફાઉન્ડેશન દ્વારા 1995માં ઇન્ટરનેશનલ પીસ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એવોર્ડ પણ તેઓને એનાયત થયેલ છે. સર, તમને જેસીસ ગાંધીનગરના આઉટસ્ટેન્ડિંગ યુથ એવોર્ડમાં આપવાની ઘટનામાં અમે સહભાગી હતા, એ અમારું સદભાગ્ય સમજીએ છીએ. હાલ તેઓ જીવન વિદ્યા સાયન્સ ઓફ એક્સટેન્શનલ રિયાલિટીઝ ભણી રહ્યા છો અને ભણાવી રહ્યા છો.
સ્મિત ભર્યા સરળ સ્નેહાળ અને જ્ઞાનસભર સુરેશભાઈ પટેલને હેપીનેસ કોચ અને મેનેજમેન્ટ ટ્રેનરને આપણે ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી અને હૃદયના નાદથી વધાવીએ. વી વેલકમ યુ સર. थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद. तो आज मुझे किस विषय पर बोलना है? आपकी जो इच्छा करे, बस हम आपको सुनने के लिए बैठे. ठीक है. कुछ एक लोग दिल्ली से, उदयपुर से, हैदराबाद से जुड़े हैं, तो सबको ध्यान में रखते हुए मैं मेरा प्रेजेंटेशन हिंदी में करूंगा. और आप में से गुजराती लोग जिनको कहीं पर हिंदी में कुछ प्रॉब्लम हो, वो उसी समय अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं. और बहुत अच्छी बात ये रहेगी कि आप अपने वीडियोस ऑन रखें, ताकि मैं इंसानों के साथ बात कर रहा हूँ ऐसा लगे, ना कि उनके साथ. मैं ये मेरे पूरे प्रोग्राम को परम आदरणीय कुसुमबेन जोशी को समर्पित करता हूँ. कुसुमबेन शायद मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन गांधीनगर में हार्डली कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कुसुमबेन को ना पहचाने. मुझे बड़ी खुशी है कुसुमबेन, आप मेरी बेटी के टीचर रहे हो, और अच्छा यह हमेशा मैंने शिक्षकों में ढूंढनी चाहिए, वो आप में हमेशा मिली. तो मैं बड़ा खुश हूँ, रोमांचित हूँ, अति प्रसन्न हूँ कि जिसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आज वो मेरे क्लास में. पुनः वंदन. तो आज जिस विषय पर मैं बोलने वाला हूँ वो है मौज लो, रोज लो. अब जब कहते हैं मौज लो और रोज लो, तो इमीडिएटली क्वेश्चन आ जाता है कि पर ना मिले तो क्या करें. तो जवाब है खोज लो. तो आने वाले 45 मिनट्स मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि मौज कैसे ली जा सकती है, रोज कैसे ले सकते हैं. इतना ही नहीं, अगर खो जाए तो ढूंढ भी सकते हैं. आप में से कई लोगों को शायद ये क्वेश्चन अभी से खड़ा हो कि इतने कोरोना के काल में आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि रोज मौज हो सके. तो मैं आपको बता दूं, मैं स्वयं अभी कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट हूं, और लगभग कल से मेरी नॉर्मल खुराक और नॉर्मल लाइफ, क्या कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेंथ शुरू हुई है. अभी मैं 100% स्ट्रांग नहीं हूं, पर मन से स्ट्रांग होने से मैंने ममता को कमिट कर दिया कि आपके कार्यक्रम से शुरू करते हैं. अब नियमित स्वरूप से वेबिनार होंगे. तो बीमारी शरीर की एक स्थिति है, और यहाँ जो मौज की बात की जा रही है वो शरीर से शुरू जरूर होती है, लेकिन शरीर पे पूरी नहीं हो जाती. ये बिल्कुल एक नया क्षेत्र है, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं. तो शरीर की कोई भी स्थिति हो, आपके या आपके परिवार के, फिर भी मौज ली जा सकती है. ये 3 शब्द मैंने कहां से पाए? कहीं कोई व्याख्यान सुन रहा था, मोस्टली वो स्वामी ब्रह्मवेदांत जी का था. वो बीच में कुछ बोले कि हम इस जगत में आए हैं मौज लेने के लिए, लेकिन हमें मौज लेनी आती नहीं, और अगर आ जाए तो रोज मिल सकती है, पर अगर हमें नहीं मिल रही है तो जिनको मिल रही है उनके संपर्क में जाए तो खोजी जा सकती है. ऐसा कुछ सुना तो मुझे ये सूझ गया कि मौज लो, रोज लो, नहीं तो खोज लो. तो अब मैं मौज के कुछ एक दायरे को बताता हूं. दोस्तों, जो पुराने दोस्त लोग हैं जिनको मुझे सुनने की आदत रही है, और अगर इनको लगे कि मैं ठीक तरह से बोल नहीं पा रहा हूं, तो इसकी वजह है एक छोटा सा ऑपरेशन मुंह के अंदर. तो अगर कहीं क्षति हो जाए तो जरा हाथ ऊपर कर देंगे, मैं फिर से बोल दूंगा. तो मौज चीज क्या है, सबसे पहले वो देखें. बाहर कुछ भी हो, लेकिन मेरे मन के अंदर स्थिरता, शांति, संतोष, प्रसन्नता बनी रहे, उसका नाम मैं मौज कहता हूं. बाहर कुछ भी हो. अभी मैं भावेश भाई के घर गया, उन्होंने मुझे बटेटा वड़ा खिलाया. अब वो मेरा फेवरेट व्यंजन भी है. कुसुम बहन कभी बुलाओगी तो मैं आ जाऊंगा.
तो फेवरेट व्यंजन भी है। अब मैंने खाया और मैं कहता हूं मौज पड़ गई। ये मौज शरीर के स्तर पर है। अब भावेश भाई के धर्मपत्नी कहे कि उर्वशी भाभी के इनको तो कुछ बनाना नहीं आता, देखो मैं बना के खिलाती हूँ। अब इन्होंने और बढ़िया तड़का वड़का लगाया होगा। मुझे नहीं मालूम बटाटा वड़ा में तड़का लगता है कि नहीं, पर जो कुछ भी मसाला पड़ता होगा। देखो, इतना भी तो मैं मूर्ख नहीं हो सकता कि मुझे ये नहीं मालूम, पर मेरे इस कहने से कुछ एक चेहरों पर मुस्कान आ गई। तो हम कैसे खुशी मनाते हैं? हमारे रेफरेंस फ्रेम में कुछ पड़ा है, उससे कुछ अलग हो तो हम एकदम खुश हो जाते हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है, बटेटा वड़ा हम थोड़ा वघार खाए। तो अब उर्वशी कहती है कि मैं इससे बेहतर बनाऊंगी, और इससे बेहतर बनाया। और मैंने खा करके कहा अरे इसमें तो और ज्यादा मौज पड़ गई। तो दोस्तों, ये केवल जीभ के लेवल की है जो निरंतर नहीं रहेगी, क्योंकि 2 5 7 उसके बाद मैं कहूंगा अब नहीं। भावेश भाई शायद आग्रह करके एक आध और दे दे, फिर एक स्थिति बनेगी मैं कहूंगा अब तो बिल्कुल नहीं। तो अगर बटेटा वड़ा के अंदर मौज होती तब तो लगातार मिलनी चाहिए। तो बटेटा वड़ा में मौज नहीं है। अब जरा इस एग्जाम्पल को मैं चौड़ा करता हूं। मैं चंद्रेश के घर गया और भावेश और उर्वशी भाभी को लेकर के गया और उनको जाके कहा कि बटेटा वड़ा बनाओ। अब यहां भी बटेटा वड़ा है। अब हम तीनों एक दूसरे के सामने देखते हैं, क्योंकि वो वैसे ही नहीं थे जो पहले खाए थे। संभव है ये बेहतर भी हो सकते हैं, संभव है कम भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे रेफरेंस फ्रेम के अंदर चलता है, ये कंपैरिजन का मामला। हमने पहले से कुछ स्वीकार के रखा है, मान के रखा है, पकड़ के रखा है कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, खाना ऐसा होना चाहिए, बटेटा वड़ा ऐसा होना चाहिए। ये चाहिए वाला जितना रेफरेंस फिक्स है, वैसा मिल जाए तो मौज, वैसा ना मिले तो कोई मौज नहीं। अंडमान की एक सुबह को मैं याद करता हूं। मेरे एक साथी उठ के कहते हैं ये भावेश भाई कैसे आइटम है। मैंने कहा क्या हो गया? अरे कल शाम को साइकिल ले आए और यहाँ सुबह में अंडमान में साइकिल चला रहे। मैंने कहा आपको क्या आपत्ति? बोले यहाँ हम मजा करने आए हैं, ये कोई मजे का तरीका है? और उनके साथ भी कुछ और लोग भी है। मैं चाय की चुस्की ले रहा था, मैंने कहा यार एक साइकिल कम थी, नहीं तो मैं भी था उसमें। तो वो बोलती बंद हो गई उनको। उनको ये लगा ये तो गलत हो गया। अभी देखिए ये क्या है, पहले से ही कंपेयर करके जाते हैं कि अंडमान गए तो होटल में घूम रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, इसको मौज कहते हैं। अब भावेश भाई के लिए मौज ये था कि मैं कहाँ मौज करना चाहूं वहां करूं। तो सुबह में 4 बजे उठ के, अब किरीट भाई कहते हैं साइकिल पे चले, चलो साइकिल पे चलते हैं। तो दीज आर ऑल डिफरेंट वेज जो हम डिक्लेयर करते हैं कि हम इसमें मौज करेंगे, फिर मौज करेंगे। आशा करता हूं आपको ये छोटा सा एनालॉजी एग्जांपल समझ में आया होगा। बाहर कुछ भी हो, बाहर स्थिति कुछ भी हो, मैं तय करूं कि मुझे इसमें मजा लेना है। बाहर स्थिति कुछ भी हो, मैं जिस मौज की बात कर रहा हूं ये मौज है। पर क्योंकि हमारी आदत हमारी पांचों सेंसेस के साथ की मौज के साथ जुड़ी, तो हम क्या कहते हैं, खा के मजा करेंगे। फिर खाने पूरे व्यंजन आ जाते हैं। एक समय था, ये ममता के घर में जाऊं तो वो बाजरे का रोटला और लहसुन की चटनी, रिंगट का भरता, ऐसे वो देती थी। पर क्योंकि मैं कुशाल के पास से कुछ ऐसा सीख गया कि इसमें मजा नहीं है, एक दिन वो मुझे ले गया पिज्जा हट। वो रोटला के ऊपर फेविकॉल से सब्जी चिपका देते हैं। ये रोटला उल्टा करो तो भी सब्जी गिरती नहीं है। और इतना लहसुन कम पड़े तो लहसुन का पाउडर देते हैं साथ में कि सब्जी पर स्प्रिंकल करो, 2 3 प्रकार के पाउडर स्प्रिंकल करो। और भी टेस्ट ना आए तो फिर सॉस की 3 4 बॉटल रख देते हैं और ये चिपकाओ।
और किसी तरह गले के नीचे ना उतरे तो पेप्सी या कोक साथ में देते हैं ताकि तुम फटाक से उतार दो। अब मेरे अंदर ये गलतफहमी बिठा दी कुशाल ने। क्या बिठा दी? कि पिज्जा में मजा है। विशाल माफ करना, तुझे ऐसा किया नहीं है, लेकिन मैं तो जो यहाँ सामने जिनके वीडियो खुले हैं मैं उनके नाम लेकर के एग्जाम्पलीफाई करता हूँ। हालांकि कुछ कुछ लोगों को इसमें से सीखने को मिल जाएगा। उर्वशी भाभी को अभी अभी सीखने का मिल गया है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धवल भाई, कभी बापू नगर में आ जाऊंगा। तो चुनी चीनू काका आज जुड़े हैं यूनाइटेड स्टेट से, वाह, न्यू जर्सी से। अभी भी वहां ठंडी है आपकी टोपी से, ऐसा लगता है। अभी देखिए, मैंने जब ऐसा जिक्र किया तो आप में से किसी को ये लगे कि वेबिनार में थोड़ी ऐसे बोलते हैं, तो गई पूरी की पूरी भैंस पानी में। क्योंकि यही तो कंसेप्ट में सिखा रहा हूं कि वेबिनार कैसा होना चाहिए कौन तय करेगा। एक तो मैं तय करूंगा, एक ममता तय करेगी, और आप लोग भी तय करेंगे। क्योंकि वेबिनार अल्टीमेटली तो हम मिले क्यों हैं? इस टाइटल से खींच के कुछ एक लोग आए हैं, कुछ एक लोग मेरे नाम से आए हैं, कुछ एक लोग ममता के साथ की दोस्ती से आए हैं, कुछ एक लोग लायंस में कितने सालों से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक क्लब को, अच्छे इनिशिएटिव को सपोर्ट करने आए हैं। कुछ एक लोग प्योर क्यूरियोसिटी से आए हैं। मेरे कुछ एक पुराने दोस्त इसीलिए आए हैं कि इसी बहाने मुझे मिलेंगे। तो ये अलग अलग पर्पस होते हुए कॉमन पर्पस तो मौज का ही है, क्योंकि स्क्रीन में से तो कुछ निकलेगा नहीं, जो भी निकलेगा आपके अंदर से ही निकलेगा। तो अगर आप मुझे देख के खुश हो रहे हो तो ये आपके अंदर से आ रहा है। तो फिर से सब्जेक्ट पर आ जाए, तो पहला हमारा पक्का एक्सपीरियंस खाने के साथ जुड़ा है। तो कुछ एक एग्जांपल दूं, यहां से अमेरिका की फ्लाइट खाली जा रही थी, तो मेरे जैसे किसी कंसल्टेंट को इनवाइट किया कि भाई एयर फ्रांस ठीक चल रही है, ये लुफ्थांसा ठीक चल रही है, तो भारत की एयर इंडिया क्यों ठीक नहीं चल रही? तो मेरे जैसे कंसल्टेंट ने कहा सिंपल, उसके अंदर भारतीय खुराक रख दो, और अहमदाबाद से चली है तो गुजराती थेपला ढेबरा रख दो। इन्होंने शुरू कर दिया। एयर इंडिया की अहमदाबाद से न्यूयॉर्क की फ्लाइट फुल हो गई, और अभी भी फुल चल रही है। मेरे जितने भी रिलेशनशिप में और दोस्त लोग हैं वो कहते हैं घर जेवू खावन। अल्या घर जेवू खावामां 20,000 રૂપિયા વધારાના પેલા લોકો લઈ લે છે, નથી દેખાતું? पर ना, मौज का फंडा पहले से तय है, घर जैसा खाना मिलना चाहिए। अभी घर जैसा खाना तो घर में रहना चाहिए कि नहीं? एक बार हम लोग दोस्तों को साथ मनाली गए थे। धीरज भाई उस समय नहीं आए, नहीं तो और मजा आ जाता। अब मनाली मार्केट में कोई कहता है कि हमारे गुजरात की पानी पूरी मिलेगी। मैंने कहा बिल्कुल मिलेगी, लेह में भी मिलती है तो मनाली में तो मिलेगी, पर तुम्हें मनाली में पानी पूरी क्यों खानी है? हिमाचली डिश खाओ। नहीं, पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो दोस्तों मूल ट्रैक पर आ जाए। एक खाने की जो सेंस है उसमें हम बहुत प्रयोग करते हैं, बहुत प्रयोग करते हैं, और हम बड़े सद्भागी भी है। मैं यूरोप में पढ़ा हूं। अब यूरोप अमेरिका में खाने का क्या है? दो ब्रेड के बीच में सब्जी डालो या सब्जी के बीच में ब्रेड डालो, इनके पास और कुछ है ही नहीं, केवल ब्रेड है और सब्जी है। हमारे पास तो सुखड़ी। अभी इन दिनों मैं कोरोना से बाहर निकल रहा हूं तो टेस्ट तो चला गया था। तो खाना खाते समय ऐसा लग रहा था जैसे मैं न्यूज़पेपर का डूचा खा रहा हूं। तो मैं हर एक समय कल्पना करता कि मैं क्या खा रहा हूं, जरा कल्पना करो। अब देखो, कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन कल्पना में हमें कौन रोक सकता है? तो गोला बना के रसगुल्ला खा रहे भाई, गोला बना के बटेटा वड़ा खा रहे। आपको पकड़ में आ रहा है? स्वाद नहीं आ रहा है, कल्पना है। तो मेरे जो भी दोस्त अभी भी कोरोना में है, मेरी कल्पना है वो दौड़ रहे, कूद रहे, भाग रहे, खुश खुशहाल है, ऐसा मैं कल्पना में करता रहता हूं। दूसरी चीज, कान। तो जीभ में से गए कान में, तो अब सुनने का पूरा कार्यक्रम। जब से ये दो पूमड़े निकले हैं, अब पूमड़े का गुजराती हिंदी पूमड़ा ही होता है, कान में जो डालते हैं ना ईयरफोन, कई लोग पूरे दिन लगा के रखते हैं।
वो चूक जाते हैं कि इतनी खूबसूरत आवाजें और भी होती है। जैसे आसपास पड़ोस में खेलते बच्चे, कुछ पंछियां, अगर केवल सुनना चाहे तो नजदीक के हाईवे पर से पास होने वाले विविध प्रकार के व्हीकल के हॉर्न के वैविध्य सभर आवाज। मैं जहां रहता हूं वहां से नजदीक में ये गुजरात सरकार ने डाइवर्जन दिया है, तो हाईवे वाले व्हीकल वहां से गुजरते हैं, तो इतने लंबे हॉर्न, उसमें भी फिल्म के गाने रखते हैं। तो आधी पंक्ति वो हॉर्न में बजती है, आधी मेरे मन में बजती है। तो हम बाहर की आवाज सुनने के आदी भी है, और ये जो कान में डालने वाला मामला है उसमें फिक्स है। और हमारे बीच में कुछ लोग अंग्रेज होते हैं जो जन्म से यहां होते हैं, लेकिन उनके अंदर की आत्मा यूरोपियन अमेरिकन होती है। वो लोग वहां की जो लंबी लंबी ऐसे करके जो गाने होते हैं ना, एकदम चुड़ैल या भूत जिसको लग जाए तो जैसे गाते हैं, वैसे गाने वो बहुत पसंद करते हैं। और वो कहते हैं अरे इसमें बहुत मजा आता है। दोस्तों मैं जब कहूँ तो उसमें 5% ऐसे हैं जो जेन्युइनली इसका मजा लेते हैं, और उसमें भी क्लासिकल होता है। मैंने ऐसे क्लासिकल गाने सुने भी है, लेकिन मैं पक्का बता दूं, समझ में कुछ नहीं आता। पर क्या है कि वो तमाचा मार के गाल लाल रखना पड़ता है ना। अभी ये चीनू काका जर्सी से कहे कि देख एल्विस प्रिस्ली का गाना सुन। अब एल्विस की प्रिस्ली का कुछ हमें अकल में ना आए, पर कहना तो पड़ेगा, हाँ क्या गाया है, क्या संवेदना है। बेटी जब ब्याह के जा रही है तो पिता का दर्द यहाँ महसूस हो रहा है, तो चीनू काका एक थप्पड़ मार के कहेंगे यहाँ बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, यहाँ प्रियतमा अपने प्रियतम को मिल रही है, और ये आ करके रो नहीं रही है, ये खुशी व्यक्त कर रही है। तो स्थिति ऐसी है। मैं दूसरे कान की बात कर रहा था, क्या सुनना, कितना सुनना, इसके भी हमारी आदत है। और कोरोना काल में घर में पैक हो जाता है ना। अब पुरुष वर्ग को यूजुअली शेयर बाजार, न्यूज मार्केट काम इंटरेस्ट है, बहनों को सीरियल वगैरह, बच्चों को कार्टून और अदर काइंड ऑफ सीरियल। कुछ एक सीरियल एकदम मूर्खता भरी होती है, जैसे नागिन, राइट। इंसान नाग का स्वरूप लेता है, फिर नाग इंसान हो जाता है। हम अभी इतने सैटेलाइट चढ़ा चुके, भारत सरकार ने एक ही समय 108 सैटेलाइट चढ़ा दिए, लेकिन अभी भी हम नागिन की बीन के सामने डांस कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सीरियल देखने की मजा लेने के भ्रम में अंदर अंदर झगड़ा करते हैं। और ममता खूबसूरत चीज ये है कि कंपनी वाले उसमें से क्या करते हैं, बड़े टीवी के साथ छोटा टीवी, राइट, ताकि आप बेडरूम में जाके देखो, बच्चे भले ड्राइंग रूम में देखे, आपको जो देखना हो देखो। अभी इन दिनों तो मुझे किसी के घर मेहमान बनने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन पिछले सालों को याद करता हूँ, बच्चे के बिहेवियर को देख के लगे कि ऐसे नॉर्मल बच्चे नहीं होते। मेरे बच्चों को तो टीवी के बिना ही बड़ा होने का सद्भाग्य मिला है। तो मैं जब पूछूं तो मालूम पड़े बच्चे ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वो कार्टून सीरियल देखते हैं तो कार्टून की तरह बिहेव करते हैं। और उनके पात्र भी ऐसे ही है, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, तो डक की तरह चलते हैं। इसमें कुछ बुरा ही नहीं है, मैं तो केवल आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि हमारी देखने की और सुनने की जो आदतें बनी, तो टेलीविजन हो, एफएम रेडियो हो, विविध मल्टीपल म्यूजिक हो, तो हम यहां से मौज ढूंढते हैं। फिर ऐसे ही कुछ कपड़ों की आदतें, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे नहीं पहनने चाहिए, वगैरह वगैरह। कईयों को कलर, अभी कुसुम बहन ने आज रेड पहना है, राइट, मैंने केसरी पहना है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट। धीरज भाई ने येलो पहना है, यशवी की मम्मी ने ब्लू पहना है। अब कुछ एक लोगों ने कुछ कुछ कलर पहने हैं। यहाँ कलर का तो कोई इशू नहीं है, कोई यहाँ बुरा नहीं माने कि मैं महिलाओं की बात करूं, तो वो एग्जाम्प्लिफिकेशन के लिए है। वो दुकान में जाएंगे, कुछ चाहिए, वो मांगेंगे, वो पसंद आ गया, बाद में पूछेंगे और कोई कलर है। इसको कहते हैं आ भला पकड़ गला। मैं यहाँ परेशान होने का एजेंडा लेके आई हूं, हालांकि मुझे चीज पसंद आ गई, लेकिन मैं मौज तो नहीं कर सकती ना, मुझे तो दुखी होने का एजेंडा है। अब क्या है,
वो बाजू वाली दुकान से 2 नए कलर आके देता है, अब कंफ्यूजन शुरू, ये लू के वो लू। अब किसी तरह एक ले लिया, दुकान के स्टेप्स उतर गए, आधा किलोमीटर चले, फिर सोचा कि नहीं उसके बदले वो लिया होता तो अच्छा। फिर वापस जाते हैं, व्यापारी को बोलते हैं वो लाओ, वो बदलते हैं। अगर पतिदेव साथ में है तो इशू खिटपिट शुरू हो जाता है। इतना पहले से समझ में नहीं आता। या मेरी कुछ कुछ बहनें भाभियां मुस्कुरा रही है, ये इंडिकेट करती है कि मैं ठीक बोल रहा हूं। ऐसा सही में होता है। इसको मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं पोस्ट डिसिजिव कन्फ्लिक्ट। निर्णय लेने के बाद शुरू हुआ कन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, पांचों सेंसेस के साथ जो मौज जुड़ी है उसका कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल बटाटा वड़ा खाइए, बिल्कुल रेड कलर के कपड़े पहनिए, बिल्कुल एल्विस प्रेस्ली सुनिए, बिल्कुल गुलाब के फूल सूंघिए। ये सब प्रकृति ने हमारे लिए क्रिएट किया है, या इंसानों ने प्रकृति में से सीख के इंसानों ने क्रिएट किया है। लेकिन इतना ध्यान रहे, इसमें से निरंतर मजा तो नहीं आएगी। और दूसरी चीज, ये पूरा जगत परिवर्तनशील है, ये लगातार बदल रहा है। तो अगर हमने किसी चीज को पकड़ लिया कि इसमें से ही मजा आएगी, तो प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे कुछ बदल गया, जैसे कुछ बदल गया, अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारी वो मजा का दायरा चला गया। तो मैं आपको जो रहस्य कह रहा था, मौज अपने अंदर से आएगी। तो जरा एक कल्पना करें कि आपके हाथ में एक स्टिकर की पैनल है, उसमें सभी स्माइली के स्टिकर है। आपने एक स्टिकर उठाया और कहीं जाके चिपकाया, दूसरा स्टिकर उठाया, कहीं जाके चिपकाया। ध्यान रहे, स्टिकर की प्लेट भी आपके हाथ में है, स्टिकर आपके हाथ में है, आपकी उंगली से ही आप वो स्टिकर निकालते हो और जहां चिपकाना चाहो चिपकाते हो। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए, हंसने के लिए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। अब फूल थोड़ी बोलेंगे, सूरज हंसा, राइट। ऐसा पूरा गाना आज का होमवर्क है आपका। ये कार्यक्रम समाप्त होते ही गूगल में जाएंगे या यूट्यूब में जाएंगे और ये गाना ढूंढेंगे, और केवल सुनेंगे नहीं। अगर आपके परिवार में कोई ऐसी आपत्ति करने वाले लोग हैं तो बाथरूम में जाइए या कोई दूसरे कमरे में जाइए, इसके साथ नाचिए, क्योंकि इसके अंदर इतनी बढ़िया बीट है कि आप नाच सकते हैं। मैंने नाचा हूं, उसके बाद बोल रहा हूं। ये पूरे गाने के अंदर जो लिखा कहा गया है, बोला गया है, वो ये स्टिकर चिपकाने वाली बात है। उसमें एक पंक्ति बहुत बढ़िया है कि मौसम को मैंने कहा तू बहुत बढ़िया है, रुक जा। तो मौसम कहता है मैं तो रुकूंगी नहीं, मैं तो चली जाऊंगी। दोस्तों, अभी अभी वसंत गई, अभी पतझड़ है या वसंत है या मिक्स है। अभी तो सर्दी भी है, 3 दिन पहले थोड़े छींटे भी पड़े थे। देखिए मौसम का हाल, अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि कैलेंडर के अनुरूप पतझड़ हो लेकिन बाहर वसंत हो सकती है। इस साल मैंने परम आश्चर्य के साथ जनवरी के अंत भाग में केसुड़ा के फ्लावर्स देखे, जो कि वेरी वेरी अनयूजुअल। 28 मार्च को जब केसू फ्लावर हो, होली के दूल्हे के आसपास, मैं हर साल इस तारीख के आसपास 15 दिन में एक ट्रैक करता हूं जिसका नाम है केसुड़ा ट्रैक। और हम गुजरात के ऐसे पैच में जाते हैं जहां मैक्सिमम केसू फ्लावर है। पर इस साल सीजन बदल गई, तो अब कौन तय करेगा? अब तो प्रकृति ने ऐसी करवटें लेना शुरू किया कि मानव अब फोरकास्ट नहीं कर सकता कि क्या होगा। तो अब हम मौसम तय करते हैं कि आया मौसम प्यार का। तो मौसम प्यार का, मौसम खुशी का, मौसम उत्सव का, मौसम आनंद का, मौसम उल्लास का। अगर कोरोना के घर के अंदर है तो मौसम है अपने अंदर भी जाने का।
दोस्तों, घर के अंदर जाते जाते अगर स्वयं के अंदर नहीं गए तो हमने सुनहरा मौका खो दिया। मैं कोई फिलोसॉफी नहीं कहता हूँ। मेरे घर में कोई दिया नहीं जलता। भगवान की एक दो फोटो जरूर है, किसी के द्वारा गिफ्ट की गई। और इन दिनों में, पहले तो लोग मुझे बहुत गिफ्ट करते, अब तो नहीं करते क्योंकि मैंने ना कर दिया है। कुछ एक लोग बुद्ध और गणेश जी गिफ्ट करते हैं, तो जहाँ देखो वहाँ मेरे घर में गणेश जी मिल जाएंगे, क्योंकि लोगों ने प्यार से दिया तो मैं फेंक भी नहीं सकता। देवस्थान में बहुत सारे भगवान इकट्ठे हो गए। एक दिन सुबह में मैं वहां से गुजरा तो देवस्थान में से आवाजाही की बहुत भीड़ हो गई है। हम अंदर अंदर झगड़ा कर रहे हैं, तो हे सुरेश कुछ कर हमारा। तो फिर सभी देवों को, अलग अलग दोस्तों को ये कह करके दिया कि मुझे किसी ने भेंट किया है, अब मैं आपको भेंट करता हूं। अगर आपको ठीक लगे तो रखना, नहीं तो इसको आगे पास ऑन कर देना। क्योंकि अब गणपति बहुत हो गए। तो एनीवे, जो जो मेरी तरह शिक्षक का काम करते हैं उनको ये मालूम होगा कि एक समय था कि लोग गणपति भेंट करते थे, और बुद्ध और गणपति की तो वाट लगा दी है। ऐसे ऐसे क्रिएट करते हैं जैसे कभी होंगे ही नहीं। मैं एक दिन ध्यान में बैठा था, मैंने सोचा गणेश जी अगर होंगे तो विग्रह कैसा होगा। अब इंसान का शरीर है और हाथी का मस्तक है। कैन यू इमेजिन द साइज? हाथी का मस्तक हो और इंसान का शरीर हो, पर ऐसा आपको एक भी मूर्ति नहीं मिलेगा। किसी भी तरह हाथी का मस्तक का साइज इंसान की तरह बना के ऊपर फिट कर देते हैं। इसीलिए गणेश जी के घर में आने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो, आज गणेश जी को याद किया है तो मौज की बात दिखा देता हूं। अपने अंदर से अगर मौज आएगी तो क्या होगा। मिस्टर शिव जी एंड मिसेस शिव जी, यानी शंकर पार्वती बैठे थे। वो अपने गेम खेल रहे थे, वीडियो गेम। तो उनको लगा कि थोड़े बच्चों को भी खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो गणेश जी और कार्तिकेय को कहा, आओ बच्चों हम साथ में वीडियो गेम खेले। बोले नहीं, तुम बेकार में वीडियो में घुस गए हो, हम तो कुछ और खेलना चाहते हैं, कुछ नया खेल खिलाओ। बोले ठीक है, जाओ सभी तीर्थों की परिक्रमा करके आओ, तो काफी खेलना हो जाएगा। कार्तिकेय ने एकदम वो मयूर नाम की इंडिगा का सैल मारा और वो चले। पर गणेश जी की मौज अपने अंदर से आने वाली मौज है। उसको घूम के मौज नहीं लेनी। उसकी गेम कहीं बाहर नहीं है, अंदर है। तो अंदर ही देखा। भाई तीर्थ कहाँ है? तीर्थ तो अपने भावनाओं में है। भावना महत्तम कहाँ है? अपने माता पिता के साथ। तो माता पिता के इर्द गिर्द चक्कर लगा दिया, उनकी यात्रा गेम विक्ट्री भी हो गई और मौज ही मौज। उस दिन से हम अपने घर में हमेशा गणेश स्थापन से शुरुआत करते हैं। वास्तु पूजन हो या विवाह हो, कोई भी मंगल प्रसंग हो। फिर घर में झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि दवे, पंड्या, जोशी और भट्ट, ये लोग हमें ये नहीं सिखाते कि गणेश जी के पास से क्या सीखना है। ये लोग हमें सिखाते हैं कि लड्डू बनाओ। यहाँ जो भी होंगे, रावल भी है ही, तो भूदेव लोग मेरे पर थोड़े नाराज हो जाएंगे। पर क्या है, मैं भी भूदेव हूँ, मेरा अटक पटेल है, लेकिन सीखना सिखाना ये ब्राह्मण कर्तव्य है। और सीखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो ब्रह्म से नीचे, इससे नीचे कुछ सीखना नहीं है। मैक्सिमम वही है सीखने का कार्यक्रम। और कहीं से कि शुरू करोगे, कहीं गणेश जी आएंगे, कहीं शिव जी आएंगे, कहीं कोई माता जी आ जाएंगे, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। जैसे कोई कहते हैं फिटनेस का करते हो, वहां कौन सा भगवान आता है? तो मैं कहा, तो जब फिटनेस की बात करते हैं तो शक्ति की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? तो फिर मैं नया मंत्र बनाया, या देवी सर्वभूतेषु फिटनेस रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो शक्ति छिपी है वही देवी है। और कौन सी देवी है भाई? तो सब कुछ अपने अंदर है। अंदर वाली मौज की मैं बात कर रहा था। गणेश जी का एग्जाम्पल देते हुए मैं ये कह रहा था कि गणेश जी के पूरे विग्रह को देखिए। कान बड़े हैं, 40 किलोमीटर दूर से हाथी सुन सकता है, ऐसा मुझे रिकांगपियो में फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया जब मैं नॉर्दर्न बेल्ट में ट्रैकिंग के लिए गया था। फिर मैंने स्टडी की तो मालूम पड़ा कि अहमदाबाद में हाथी चिंगारे तो गांधीनगर में दूसरा हाथी सुन सकता है। तो सुनने का कार्यक्रम, और हाथी का कान फोकस करने वाला कान है। वो कुछ भी मूव करके फोकस कर सकता है। गणेश जी कहते हैं जो सुनना है वही सुनो, फोकस करो भाई, जो सुनना है वही सुनो।
और बहुत दूर की आवाज भी सुनो। मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मैं कितना दूर हूं अभी आप सुन रहे हो? अगर आपने केवल वॉल्यूम सुना तो आपने कुछ नहीं सुना। मैं फिर से गा के सुनाता हूं। मैं शब्द सुने ऐसा नहीं पूछ रहा हूं, आप शब्द के परे क्या सुन रहे हो? चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। अब जिनको जवाब मिला हाथ ऊपर करो, और मैं जिनको बोलूं नाम वो फिर अपना ऑडियो ऑन करके जवाब दे। आपने मेरा क्या सुना? मेहरबानी करके ये मत बताना कि चिदानंद रूप शिवो हम सुना। ये तो सब सुन ही रहे, ये तो केवल आवाज है। ओके चंद्रेश। आपका भक्ति भाव। ओके गुड, 1। દિલથી તમને એકદમ તમારો દિલની ભાવના સુનાઈ આપી। वेरी गुड, बढ़िया। भाव भाव तत्व सुना, वेरी गुड। और क्या? जो हाथ ऊपर करेंगे अपने मस्तक के पास तो मैं देख लूंगा। चीनू काका आपका ऑडियो ऑन करो, ऑडियो ऑन करो। भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना। ओके प्रार्थना, वेरी। और कुछ? फिनॉल ऑडियो बंद कर दीजिए। हाँ सर, बोलो फिनॉल। તમે બહુ મજાથી ગાયું, આનંદથી ગાયું અને અમને આનંદ આવ્યો જોડે। ओके आपने प्रसन्नता सुनी, बहुत बढ़िया। और कुछ? कृष्णा। यस। तो आपने ये जो शंकराचार्य जी का जो निर्वाण षटकम जो बताया है, इसके अंदर की चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं और हमेशा आनंद में रहना चाहता हूं, तो अपने स्वरूप के बारे में बताया जो कि बेसिक अर्थ इसको कहता है। क्या बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया कृष्ण, आपने पकड़ लिया। आज के सब्जेक्ट के ऊपर ही मैं बोल गाया हूँ। यस हयाती। ત્રણ અલગ અલગ રીતે તમે ચિદાનંદ રૂપ ગાયું है। बहुत अच्छा। देखो अलग अलग स्वर में गाया मैंने, ऊंचे स्वर में भी गाया, नीचे स्वर में भी गाया, आरोह अवरोह के साथ गाया। बहुत बढ़िया। तो देखिए मल्टीपल व्यू पॉइंट्स आए। अब मजे की बात, एक दो जवाब के साथ मैं सहमत नहीं हूं। जैसे मेरा कोई भक्ति भाव नहीं है, नंबर 2 मेरा प्रार्थना भी नहीं है, पर ये सब संभावनाएं हैं। तो अगर आप मुझे सुनते हुए प्रार्थना महसूस करते हो तो प्रसन्नता आपकी हो गई कि नहीं? मेरे मन के अंदर कुछ भी ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं भक्ति पेश कर रहा हूं तो आप तो प्रसन्नता महसूस करोगे। कितनों को ये पकड़ में आ रहा है? हाथ ऊपर करो। तो बाहर कुछ भी हो रहा हो, अगर मैं अपने अंदर शांत हूं, स्थिर हूं, फोकस से सुनता हूं, तो बहुत सारी संभावनाएं खुलती है सुनने की। और ये एक सबसे बड़ी संभावना है कि मैं वही सुनूं मैं जो सुनना चाहता हूं, तो मेरी प्रसन्नता में बढ़ोतरी हो, वैसा ही सुनूंगा। गांधी जी के कमरे में 3 बंदर वाला खिलौना था, उसमें कान बंद वाला एक खिलौना है, यानी नहीं सुनना। तो मैं वही सुनूं जो सुनना चाहूं। अभी देखो कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपका दोष निकाल रहा है, उस समय अगर आप ऐसे सुनो, अच्छा ये मुझे फीडबैक दे रहा है, फ्रीलांस कंसल्टेंट, फ्री में अवेलेबल सलाह, तो कैसा रहेगा? आपका मूड बिगड़ा भी होगा ना, वापस ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करते। लोग हमारा दोष निकाले, हमारे सामने उंगली उठाए, कि हम बर्दाश्त नहीं करते।
लोग विचित्र तरीके से पेश आए। अब ये किरीट भाई मुझे कहे कि सुरेश भाई गधेड़ा है। अब मेरे सामने चॉइस है। नंबर 1, इन्होंने मुझे गधा कहा, संभावना है उनका दिमाग का केमिकल लोचा हो गया, क्योंकि मैं तो गधा नहीं हूं, फिर भी ये मुझे गधा कह रहे। नंबर 2, उन्होंने शायद अपनी पत्नी के चश्मे पहने जिनके नंबर अलग है, और ये बाहर देख रही थी खिड़की के बाहर, तो उसी डायरेक्शन में देख रहे और फिर मुझे कह रहे, तो बाहर तो गधा था, तो शायद एंगल अलग है, चश्मा अलग है। तीसरा, अच्छा ये मेरी परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे गधा बोल के मैं कब तक अपने आप को संभाले रखता हूं, तो परीक्षा हो जाए। तो ये सब मल्टीपल वे है, और ये वे कहां से आते हैं? अपने अंदर से आते हैं। अगर हमने तय कर लिया मजा करना, तो मैं मानता हूं आपको मौज तो बराबर समझ में आ गया होगा। तो मैंने कहा 5 सेंसेस है, 5 सेंसेस के कॉन्टेक्ट में जो कुछ चीजें आती है हम उसमें से मजा लेने के आदी बन चुके हैं। मैंने आज नई बात बताई है कि बाहर से जो कुछ भी हो हम स्टिकर लगाएंगे खुशी का, कि हम इसमें खुश होंगे, हम इसमें खुश होंगे, हम इसमें खुश होंगे, तो फिर हम इसमें खुश हो सकते हैं। फिर हमारे पास पूरी चॉइस रहती है। फिर सामने समंदर है और मन है कि हम इसमें नहाए, और कोई नहीं नहा रहा है, फिर भी नहा सकते हैं। सामने ग्राउंड है, म्यूजिक बज रहा है, कोई नाच नहीं रहा है, पर अपने को नाचने का मन है तो हम नाच लेंगे। किसी का जेब काटना बुरा है, नाचना बुरा नहीं। झूठ बोलना बुरा है, गाना बुरा नहीं है। तो गाने का मन हुआ गा लिया, नाचने का मन हुआ नाच लिया। धीरज भाई के घर जाके भोजन करने का मन हुआ, फोन करके कह दिया धीरज भाई आने वाला हूँ, जरा ठीक आ जाए स्ट्रेंथ और टेस्ट अब आने लगा है, और जरा ठीक बेहतर लगे, ताकि बटेटा वड़ा खाते हुए ये ना लगे कि मैं सब्जी रोटी खा रहा हूँ, तो कम से कम अप्रोप्रिएट टेस्ट हो तो फिर आ जाऊंगा। तो फिर हम तय करेंगे कि स्टिकर को कहाँ चिपकाना है, फिर स्टिकर वहां चिपकाएंगे। ठीक हो गया। तो पहला कंपोनेंट यहाँ पूरा हुआ, ये था मौज। हालांकि मैंने सब कुछ इसमें कह दिया है, पर फिर भी अब रोज को डिफाइन करता हूँ। एक तो गांधीनगर में दौड़ते हैं उसको भी रोज कहते हैं, नील गाय अथवा रोजड़ा। तो अभी इन दिनों तो ये पूरे गुजरात में दिखते हैं, राइट परम, जहां भी घूमो वो रोज तो दिख ही जाते हैं। और मैं बहुत सारे फार्म की विजिट ली पिछले साल, तो मैं कहता हूँ कोई प्रॉब्लम? बोले हाँ रोज का प्रॉब्लम है। तो मेरे मन के अंदर रोज वो भी दिखता है और ये भी दिखता है। तो यहां मैं जिस रोज की बात कर रहा हूं वो है प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण। उसके लिए हम किसी छोटे बच्चे को भी याद कर ले। ममता तुम्हें अपूर्वा के बच्चे को याद कर रहे हैं, राइट? यहाँ जिन जिन को मुझे मालूम है तो अपने बच्चों को याद करें। जिनके बच्चे नहीं है, आसपास बच्चे भी याद नहीं आ रहे हैं, तो अपने बचपन को भी याद कर सकते हैं। तो देखिए, जब बचपन को याद करेंगे या बच्चे को देखेंगे तो बच्चे हमेशा से खुश ही रहते हैं। जो इसको पीटते हैं, डांटते, थोड़ी देर के बाद उसी की गोद में बैठते खेलते। देखिए यहाँ एक पूरा परिवार है, जीसा अभी माँ की गोद में घुस रही है, उसके साथ 2 खिलौने हैं। अभी इसके आसपास 3 खिलौने हैं, लेकिन कौन जाने कहां से ये खिलौनों की आदत आई। देखिए शैलेश, जयश्री और हयाती, 3 खिलौने इसके आसपास हैं, लेकिन 2 निर्जीव टेडी बेयर लेकर के या कुछ ऐसा ही मुझे दिख रहा है, राइट? देखो अभी जीसा का चेहरा खिल उठा, ओ अभी बोला मिकी माउस, ये मिनी माउस है, लेडी। एनीवे, पॉइंट ये था कि बच्चे निरंतर खुश कैसे रहते हैं। जिसने उसको डांटा है उसी की गोद में कैसे जाते हैं? क्योंकि वो वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में जीते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। एक हिंदी फिल्म का गाना मुझे याद रहा है, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। तो मेरा एक दोस्त है प्रेमल, वो कहता है बपोर नु शू,
दोपहर का क्या, तो ये हो गया प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। मैंने धीरज भाई को ये गाना सुनाया तो धीरज भाई कहते हैं तुम भूत हो गया, 100 साल पहले प्यार था अभी आ कैसे। तो ये सब प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस के एग्जाम्पल है, वर्तमान क्षण में जीना। बच्चे इसीलिए खुश हैं क्योंकि वो प्रेजेंट है। चलिए मैं आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले चलता हूं। इन दिनों गांधीनगर में, और वैसे तो पूरे गुजरात में, लेकिन गांधीनगर में अप्रैल मिड आते आते गरमाओ नामक एक ट्री है, उसमें फ्लावरिंग शुरू होता है। जिनको गरमाओ नहीं मालूम वो गुलमोहर, सोनमोहर, ऐसे जो भी पीले कलर के बहुत सारे फ्लावरिंग ट्री है, कोई भी को याद कर ले, जो मार्च एंड से शुरू होकर के अप्रैल मई जून तक, तो इतने फ्लावर्स आते हैं, पूरा गांधीनगर येलो येलो भर जाता है। निकलिए घर के बाहर, कहीं भी कोई तो कोई पौधा तो होगा। ये आपका प्रेजेंट मोमेंट है। फूल नहीं भी आया, पतझड़ जैसा लग रहा है तो सूखा भी हो सकता है। अगर ममता दीदी ने इसका पूरा ग्रुप बनाया होगा, नो मैं कुछ मेरी ली हुई तस्वीरें, और मेरा एक दोस्त है परम, गूगल विनर है, उसकी ली हुई तस्वीरें भेजूंगा। कितनी खूबसूरत हो सकती है। मेरे गार्डन में पतझड़ का मौसम, पूरा सूखे पेड़ के ऊपर मयूर आके बैठा, और शाम का वक्त था। मैंने तस्वीर ली थी, केवल ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, लेकिन आप इसमें मयूर को पहचान लोगे। तो प्रेजेंट मोमेंट में पौधे हैं, फूल है, पंछियां हैं। अब जिनको कोरोना का इश्यू है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपका जहां भी घर हो, आपके घर के अंदर से बर्तन लो, उसमें पानी भरो। अब बहुत सारे बर्तन हमने इकट्ठे करके रखे हैं, मेहरबानी करके कंजूसाई मत करना। मेरे वेबिनार के बाद लोग एक थाली रखते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं, सुरेश भाई ने कहा एक भी चिड़िया नहीं आई। अब तुम जहां रखोगे वहां चिड़िया आएगी। तुम्हारे घर के जितने भी जगह से तुम देख सकते हो, और तुम ना देख सको कोई प्रॉब्लम नहीं, चिड़िया देख सके, ऐसी अलग 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 जगह पे जितने भी बर्तन है, छोटे बड़े, उसमें पानी रख दो। ध्यान रहे बर्तन गर्म हो जाए ऐसी स्थिति में मत रखना। राइट, थोड़े दाने रखो। अपने कोठार में बहुत सारे गेहूं, बाजरा, ज्वार होगा ही, निकालो थोड़ा, थोड़े दाने रख दो, और डेली देखो, इंतजार करो। मैं मेरा खुशी आपको मैं शेयर करता हूँ। दोपहर के 2 बजे मैं अपनी खिड़की में जो लीला देखता हूँ, सुबह शाम तो देखता ही, पर 2 बजे भी देखता हूँ। इनका पानी पीना, इनका बिल्कुल छांव में बैठना। इन दिनों मयूर, मिसिस मयूर यानी पिकॉक, तो ये बड़ी साइज के बर्ड थी। परम ने मेरे घर पे फोटोग्राफी की है, एक दिन में शायद उसने 25 से आसपास पक्षी एक ही दिन में वीडियोग्राफी में पकड़े थे। तो उस समय तो मौसम अलग था। तो अभी इन दिनों बर्ड्स, इतने बर्ड्स में देख रहा हूँ, तो दोपहर के 2 बजे भी मुझे सोने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी कोरोना कहाँ सोने देता है। तो खिड़की में से बाहर झांको, इतना कम हो गया, चलो अपने अंदर झांकते हैं। विविध प्रकार की किताबें पढ़ना, विविध प्रकार की किताबें क्यों पढ़ना? ऐसी किताबें पढ़ना जो अपने अंदर दृष्टि का बिंदु कर दे। अभी मैंने फॉरगॉटन हीरो, सुभाष चंद्र बोस की फिल्म देखी, वीर सावरकर देखी, और एक ज्योति का पिक्चर देखी टीचर की। ये पिक्चर जब देखते हैं तो अपने अंदर दृष्टिपात हो ही जाता है। आप सरप्राइज होंगे, सुभाष चंद्र बोस को अस्थमा था, फिर भी उन्होंने आर्मी के कपड़े पहने, आजाद हिंद फौज की रचना की, दुनिया के दिग्गज नेताओं को मिले। इतना ही नहीं, बर्मा पूरा दिवालिया हो गया था, करेंसी भी बनाई, भारत के पहले बड़ा प्रधान अथवा राष्ट्रपति के शपथ लिए, जय हिंद का नारा उन्होंने दिया था। धीरज भाई याद करो हमारी अंडमान की ट्रिप। भावेश भाई, अंडमान जाने का सबसे बड़ा आकर्षण मेरे लिए सुभाष चंद्र बोस का है, क्योंकि जय हिंद मिशन, जय हिंद इतने सालों से मैं चला रहा हूँ। मैं जय श्री कृष्ण बोलने वालों को तो जय श्री कृष्ण कहता हूँ, लेकिन लोग गांधीनगर में तो मुझे सुरेश जय हिंद या सुरेश पटेल जय हिंद ऐसे ही जानते हैं।
लोग को जय हिंद मेरा सरनेम मानते हैं, और मैं खुश हूं, क्योंकि भारत की आजादी की लड़ाई में सबसे पहला कैप्चर हुआ था ये दो आइलैंड, अंडमान निकोबार के दो आइलैंड, जो आज शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नामक है, जो सुभाष जी ने उस समय कैप्चर किए थे, नामकरण किया था। दुर्भाग्य है कि शुरुआती सालों में इनको इग्नोर किया गया। आज फिर से वही नामकरण हो गया है, फिर से। और जब जब अंडमान जाने के पल आते हैं, प्लान होता है, तो इतना रोमांच से भर जाता हूं मैं कि कैसे समय में सुभाष जी वहां पहुंचे थे। तो दोस्तों, मैं बता रहा था प्रेजेंट मोमेंट की बात, वर्तमान क्षण। तो कितनी सुविधाएं घर में उपलब्ध है, उस सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। जिनके घर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पड़े हो, बजाना शुरू करो। आपको नहीं आता तो एक मोटी कोठी लेवानी, गुजराती में बड़ी कोठी लेने की, 7 फुट से नीचे नहीं, उसमें पूरा पानी भरने का। आगे मैं क्यों अशुभ बोलूं, आप स्वयं बोल ही लिए अपने मन के अंदर। गुजराती लोग तो बोल ही देते हैं। तो ढांकनी में पानी। तो दोस्तों, यूट्यूब के अंदर कैसे हारमोनियम सीखे, कैसे फ्लूट सीखे, और फिर कैसे माउथ ऑर्गन सीखे, ये सब आता है। और मेरे एक दोस्त है कृष्णा, मैं उसके वेबिनार सेट करूंगा तो वो भी आपको कम से कम भारत का राष्ट्रगान या वंदे मातरम, 1-2 चीज तो सिखाई देगा वेबिनार के जरिए। तो फिर 1-2 गाने सीख जाएंगे, तो भी जहां चाहे चलो भाई सब अटेंशन की पोज में आ जाओ, मैं राष्ट्रगीत गाता हूं, तो आपकी मजा शुरू। तो आइए, वर्तमान में दोस्तों सभी को अभिनंदन करता हूं। आप लोग अभी इसी समय मेरे साथ इसीलिए हो क्योंकि या तो आपको कोरोना नहीं है, और अगर है तो फिर आप उस लेवल की स्वस्थता में हो कि मेरे प्रोग्राम को पार्टिसिपेट कर रहे हो। दूसरा, आपके घर में भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो कि आपको यहाँ से दूर जाना पड़े, तो गुड न्यूज है। और मैं मानता हूँ आपने दोपहर का तो खाना खाया ही होगा, किसी को अभी भूख लगी भी होगी, या कुछ एक लोग खाना खा के बैठे होंगे, राइट। मैंने राइस खाया है केवल, और मैं प्रोग्राम समाप्त करने के बाद फिर से खाऊंगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि लगातार 1-1.5 घंटा बोलने से फिर से भूख लग जाएगी, राइट। अभी नई नई भूख निकली है। मैं अभी इन दिनों नई नई दुल्हन को याद करता हूँ जो ससुराल में जाती है ना, तो मेरी जीभ को कुछ नया नया लग रहा है। यही पुराने खुराक के नए नए स्वाद आ रहे हैं, और क्या खाऊं उसके विचार भी नए नए आ रहे हैं। तो तो प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस के अंदर आप देखिए कि क्या क्या संभावना घर के अंदर है। अच्छा, तीसरा शब्द क्या था, खोज लो। तो लगातार क्या किया हमने, अभी जितनी भी बात की वो पूरी खोज की ही बात है। तो अभी जैसे रोज की बात कर रहा था, उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात है, तो आपने यूट्यूब चैनल शुरू की और हारमोनियम सीखना शुरू किया। आप कहोगे मेरे घर में हारमोनियम नहीं है, तो एक बढ़िया आइडिया बताता हूँ। कुछ एक लोगों को फोन करो, कुछ एक आसपास पड़ोस को पूछो फोन करके, तुम्हारे घर में कुछ इंस्ट्रूमेंट है, तो कोई तो मिल जाएगा, उसके पास से मांग लो। ऐसी भिखारी वड़िया करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे काम के लिए भीख मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इतने सालों से भीख मांग रहा हूँ। ममता, मुझे बहुत खुशी है तुमने आज सैनिकों का जिक्र किया। ये पूरी सभा को जान के खुशी होगी, 2009 में मुझे गुजरात का हाईएस्ट अवार्ड मिला है इंडिविजुअल डोनर का, सैनिक वेलफेयर फंड के लिए। दोस्तों, तब से मैं लगातार मांगता आया हूँ, आज भी मांगता ही रहता हूँ। क्या अपने शहीदों के परिवार के लिए मांगना कोई बुरी बात है? एक अच्छे काम के लिए मैं पैसे मांगता हूँ, तो आप अच्छे काम के लिए हारमोनियम मांगिए। आपको हारमोनियम नहीं मिला, फ्लूट नहीं मिला, माउथ ऑर्गन नहीं मिला, मेहरबानी करके कोई मुझे फोन नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीनों इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है। लेकिन मैं मेरी वर्तमान क्षण नहीं खराब करना चाहता आपको देके, तो आप कहीं से जुगाड़ करो। नंबर 2, अमेजोन तो है ही, कम से कम माउथ ऑर्गन और फ्लूट तो ऑर्डर कर ही सकते हो, वो तो घर बैठे मिल सकता है। तीसरा, आपको पैसे भी नहीं खर्चने, ऐसे आप इतने कंजूस हो, और आपको मांगना भी नहीं है, क्योंकि आपकी वो कलगी नीचे आ जाती है। तो क्या करना, बहुत बढ़िया आइडिया देता हूँ, क्रॉकरी होगी, सबके घर में क्रॉकरी होती है। क्रॉकरी में कांच के कप उठाओ, 6 तो होंगे, क्योंकि महिलाओं को आदत होती है 6 का सेट। 6 में पानी भरो, लेकिन पानी का लेवल अलग अलग होना चाहिए। और आपके घर में बेलन होगा, क्योंकि रोटी बनती होगी, राइट। तो 2 बेलन ले लो,
एक बेलन मांग लो, नहीं तो एक बेलन के 2 टुकड़े कर दो, अथवा 2 पेंसिल ले लो। आपको अगर टुकड़े करने से प्रॉब्लम नहीं होगा, अरे प्रॉब्लम बहुत बड़ा होगा, उससे नया मौज मिलेगा, एक नया प्रकार का कि अभी अब कैसे रोटली बनाए। तो क्रिएटिव वे ऑफ मेकिंग रोटी। तो फिर ये बन गया जल तरंग। इसमें सारे गमा पधनी कितने आवाज निकलेंगे, 7 कटोरे तो बहुत बढ़िया, सारे गमा पधनी सा हो जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो थाली, पाटकी, ऐसे अलग अलग बर्तन ले लो, चमची से अलग अलग बर्तन को ठोकोगे तो अलग अलग आवाज निकलेगी। इसमें से फिर यूट्यूब पर जाके सारे गमा पधनी से 10-15 बार सुनो, इससे पकड़ में आएगा। हाँ, थाली को ठोकते हैं तो सा आवाज आता है, और ये तपेली को ठोकते हैं तो ख आवाज आता है। तो ऐसे करके जो भी सारे गमा पधनी सा कर लो, और फिर जो मन में आए बजाओ। सुनने वाला कहेंगे इसमें से तो कोई गाना नहीं है, तो फिर उनको कहो कि सुरेश पटेल का वेबिनार अटेंड करो, रोज लो, मौज लो, ना मिले तो खेज लो, क्योंकि अंदर से आवाज आती है। आप कहो कि जो गाना मैं बजा रहा हूँ उसकी आवाज मेरे अंदर से आ रही, तुम अपने अंदर से सुनना है तो पहले वेबिनार अटेंड करो, तो ऐसे मौज हो जाएगी। तो दोस्तों, 9:24 हुए हैं। मुझे सब्जेक्ट के अंदर जो मेजर डिटेलिंग करना था वो मैंने किया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोग अपने वीडियोज ऑन करो। मैं सबके खूबसूरत चेहरों को देखना चाहता हूँ, कम से कम मेरा प्रेजेंट मोमेंट तो खूबसूरत बना दो। देखो, कीर्ति मुस्कुराता है तो कितना बढ़िया लगता है, राइट? कीर्ति अब मैं किसी को कीर्ति भाभी या कीर्ति ऐसा बोलता हूँ, आई होप के बुरा नहीं मानेंगे, राइट? दोस्ती में सब कुछ चलता है। तो निमेश, तुम चश्मा उतारो यार, तुम मुझे वो पुराना श्रेक का पात्र जैसा नजर आते हो। हाँ, अब ठीक है। कुछ एक लोग अपने चेहरे पर लाइट नहीं रखते, वो अपने पीछे लाइट रखते हैं, जैसे भगवान अपने पीछे गोल गोल चक्कर रखते हैं। अब निमेश कितना खूबसूरत दिखता है। ममता ने इसी पर सीसीटीवी लगाई होगी कॉलेज में। देखो, ये चीनू काका को देखिए, ये जब खुश होते हैं मैं बड़ा रोमांचित हो जाता हूँ। भाई, मैं जिनका नाम लेता हूँ ये लोग पुराने हैं, और मेरे जो वेबिनार चलते हैं मैं सबको गुड न्यूज भी दे दूं। जिनको ये रोज वाला मामला थोड़ा ज्यादा पकड़ में लेना है, उनको सभी को इनविटेशन है। मंडे से 19 तारीख से मेरे वेबिनार शुरू होंगे, और इमोशनल इंटेलिजेंस में कोपिंग विथ इमोशन में सिखा चुका हूं, तो उसके एक्सटेंशन में एम्पैथी, दूसरों के विचार और दूसरों की भावनाओं को कैसे समझे, उसके ऊपर पूरा 10 एपिसोड का वेबिनार सीरीज सोमवार से शुरू होगा, यही समय 8:30 से 9:30। तो आपका स्वागत है, और अभी पूरा फॉरम खुला है। जिनको सवाल पूछना है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप सवाल पूछ सकते हैं हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में। मैं हिंदी में जवाब दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो अलग भाषाओं का प्रयोग करूंगा। सभी को रिक्वेस्ट है अपने कैमरा खोल दे ताकि मैं आपको देख सकूं। धन्यवाद। कोई सवाल? સર, તમે તમારા વિશે થોડું કહો ને, થોડુંક અમારા મેમ્બર્સને બી ખબર પડે. એટલે જેમ તમે કીધું ને, આ સૈનિક ફંડ વાળું, પછી તમારું પર્યાવરણ વિશેની તમારી જે સ્પેશિયાલિટી છે, તમારા આઉટબાઉન્ડ પ્રોગ્રામ્સ, તમારા ટ્રેકિંગ પ્રોગ્રામ્સ, એના વિશે થોડી વાત કરું. ઓકે, મમતાબેન, ગુજરાતી સોમવારના એમના એપિસોડનું જે લિંક હોય એ મૂકજો. હાજી, ચોક્કસ. तो मैं अपनी एक प्रिय कविता सुनाता हूँ। હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું, હું ક્યાં એક એક કામ મારું કે તમારું કરવા આવ્યો છું, હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું. હવે એવા હોય કે અમે તો બહુ કામઢા છીએ, ના તો આળસુડો લાગે છે, તો તમને કહી દઉં કે જેમની કવિતાઓ એ દરજ્જે પહોંચી હતી કે 35 વર્ષ સુધી આપણે કવિતાઓ લખી નહોતી, પણ છતાં એ સૌથી સન્માનનીય કવિ હતા અને સાહિત્ય અકાદમીના પ્રમુખ હતા, નિરંજન ભગત. આ એમની કવિતા છે, હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું, હું ક્યાં એક એક કામ મારું કે તમારું કરવા આવ્યો છું. આ પથપરસી મધુર હવા ને ચહેરા ચમકે નવા નવા. જો જેટલા બી શિક્ષકો છે, કુસુમબેન વગેરે રાજી થશે, શિક્ષક કર્તવ્ય એવું છે જેમાં બધા ચહેરા નવા મળે.
પણ એનો મતલબ એવો નથી કે તમે શિક્ષક નથી તો તમને ચહેરા નવા ના મળે, તમને મળે છે, રોજ કેટલા બધા માણસો મળે. તો જિંદગીનો પથ, આ પથ પર શી મધુર હવા ને ચહેરા ચમકે નવા નવા, રે ચહુ ન પાછો ઘેર જવા. હજી મરવાની ઉતાવળ નથી. ચહુ ન પાછો ઘેર જવા, હું ડગ સાત સુખે ભરવા, અહીં સ્વપ્ન અહીં સરવા આવ્યો છું. હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું. હું ડગ સાત સુખે ભરવા, સ્વપ્ન અહીં સરવા આવ્યો છું. હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું. જાદુ એવો જાય જડી, શૈલેન્દ્રસિંહ, જાદુ એવો જાય જડી કે ગાઈ શકું બે ચાર ઘડી કે બે ચાર કડી. જાદુ એવો જાય જડી કે ગાઈ શકું બે ચાર કડી ને ચાહી શકું તમને સૌને બે ચાર ઘડી. તો ગીત પ્રેમનું આ પૃથ્વીના કર્ણપટે ધરવા આવ્યો છું. હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું. તો નિરંજન ભગત સાહેબે જે વાત કરી છે, મમતાબેને મારા વિશે પૂછ્યું તો બહુ વર્ષો પહેલા એવી ખબર પડી ગઈ कि आखी जिंदगी है ना यात्रा है, ये पूरी शरीर की यात्रा है. और ये यात्रा कैसे चलती है, जब हम आंख खोलते हैं ट्रेन चल रही होती है और हम ट्रेन के एक डिब्बे में बैठे होते हैं. धीरे धीरे पूरी आंखें खुलती है, कोई हमें पहचान करा देता है, ये पापा है, ये मम्मी है. ट्रेन चलती है, अगले स्टेशन से कोई और चढ़ता है, इसको कहते हैं भाई है, बहन है. फिर हम दौड़ना भागना शुरू करते हैं तो पूरी बोगी होती है, 72 पैसेंजर, काका मामा नाना फूफा फूफी दादा दादी दोस्त सभी प्रकार के. ट्रेन चलती रहती है, अगले स्टेशन पे कोई उतर जाता है, कभी दादी उतर गई, कभी दादा उतर गए, और कोई चढ़ता है, कोई नया उतरता चढ़ता है, ऐसा चलता रहता है. ऐसी यात्रा में कोई एक व्यक्ति नेक्स्ट स्टेशन से चढ़ता है और बाजू में आके बैठ जाता है स्टिकर बन के, जब तो नहीं उतरूंगा नहीं उतरूंगी. ये फिर पति पत्नी संबंध है, राइट. फिर आगे ट्रेन चलती रहती है और फिर जुड़ते जाते हैं, ये बच्चे हैं. तो हमारी बचपन से यात्रा शुरू हुई और हम बूढ़े हुए, ऐसी कल्पना मन में करें तो पूरी जिंदगी ऐसी यात्रा है. इस यात्रा में कितने पैसेंजर हमें मिलते हैं. हम बाहर की यात्रा करते रहते, चुप जाते, अंदर भी एक यात्रा है, वो है हमारी विकास की यात्रा. तो ममता बहन, मुझे कॉलेज के दिनों में विवेकानंद जी की भेंट हो गई. करीब 8वीं कक्षा में गांधी जी और सोक्रेटिस की भेंट हो गई. तो फिर ये मेरी जो वांचन की यात्रा चली, तो मुझे लगा कि मुझे मन होता था कि सुबह में बटेटा पोहा खाना गांधी जी के साथ. तो कैसे खाए, तो रात को गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी, पूरी रात मन में वही चला, सुबह में उठे वही चल रहा है. तो पोहा खा रहे लेकिन गांधी जी मन में चल रहे, तो टेक्निक हाथ में आ गई. तो जो जिन जिन लोगों ने ग्रेट यात्राएं की, वो महान लोगों की यात्रा करते करते अपनी अंदर यात्रा शुरू हो गई. वो अंदर यात्रा से ये पकड़ में आया कि मरने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है. और अच्छा इंसान का मतलब भगवे कपड़े या सफेद कपड़े पहनना नहीं है. अच्छे इंसान का केवल यही मतलब है, हम जो कर रहे हैं उसमें खुशी है, और हम जिसके साथ कर रहे हैं क्या इसको खुशी दे सकते हैं. तो एक दो चीजों का निर्णय ले लिया, मेरी शरीर यात्रा में किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा. तो कभी भी किसी को कोई भी दुख ना हो, इसका मैं ध्यान रखता हूँ. हालांकि मेरी भूमिका टीचर की है, तो कई बार लोगों को लग जाता है. कभी ट्रैकिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ तो सभी को अनुकूल सभी चीजें नहीं होती, पर उनको मेरे साथ रहने से धीरे धीरे आइडिया आ जाता है कि इंटेंशन मेरा दुखी करने का नहीं था, बल्कि बेहतर उनको खुश करने का. तो मेरी एक प्रवृत्ति यात्रा की रही है, वो है ट्रैकिंग. तो साल में दीदी ने वैसे बता दिया, हिमालय तो है ही, तो 1 2 3 बार हिमालय की यात्रा हो जाती है, 5 6 7 बार गुजरात में अलग अलग लोकेशन. इतने लॉकडाउन होते हुए भी 6 ट्रैक हुए हैं. और अभी मैं कश्मीर से लौटा, और कश्मीर में सोनमर्ग में वो कोट और कपड़े बाहर के भाड़े के पहन के बर्फ में जाना था. मुझे केवल इसी पर डाउट है कि वहां से हम लोगों ने इन्फेक्शन पकड़ा होगा, क्योंकि मेरे साथ 10 लोगों ने पकड़ा, अदरवाइज बाकी सब ठीक था. तो ऐसे समय में भी इतने फार्मर्स को मैं मिला हूं. तो यात्रा करते करते, ट्रैकिंग करते करते प्रकृति का बहुत सारा प्यार मेरे दोस्तों के अंदर मैं डेवलप कर सका.
हिमालय की यात्रा में जवानों को देखा तो मालूम पड़ा, तो ये शुरू हो गया कि इतनी हाइट पर ये लोग इतना ग्रेट काम करते हैं, हम तो एसी में कंफर्टेबल में है, हम और कुछ ना करें। जिन्होंने देश के लिए जान दी उनके परिवारों के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है। तो सैनिक वेलफेयर शुरू कर दिया। मेरे लिए तो विक्रम बत्रा ही भगवान है। जिन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपने गोली खा ली, तो यही हमारे भगवान है। लाइक अहमदाबाद के शहीद अपने राठौड़ साहब, वो हमारे भगवान। तो कहाँ ढूंढेंगे? मेरे घर के सामने जो सब्जी लेके आता है वो भी मेरा भगवान है। वो मुझे सब्जी देने के लिए कितना बेचारा धूप में लारी चलाता है, तो कृतज्ञता से दिल भर जाता है। कितनी मेहनत के बाद बहुत सारा कुछ मिला है। तो मैंने फिर प्रवृत्ति शुरू की। उसमें 3 प्रवृत्ति में मैं अपने काम को शेयर कर सकता हूँ। एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम जहाँ से मुझे पैसे मिले, दूसरा विद्यार्थियों का कार्यक्रम, पूरी पीढ़ी तैयार हो, तीसरी स्वयंसेवी संस्था, जैसे अभी लायंस क्लब का प्रोग्राम कर रहा हूँ, ऐसे लायंस, रोटरी, जेसिस, ब्रह्मा कुमारी, BAP, स्वामीनारायण, मल्टीपल संस्था जो भी अच्छा करने की कोशिश करती हो उस संस्था को सेवा देना। पकड़ में आ गया, जिंदगी के 24 घंटा पैसा कमाने के लिए नहीं है, जिंदगी के 24 घंटे जिंदगी कमाने के लिए है। तो ममता, कई बार लोग पूछते तुमने कितने पैसे कमाए, क्योंकि मेरे साथ इंजीनियरिंग करने वाले बहुत बड़ी बड़ी अरबों खरबों के मालिक है। मेरे साथ बहुत सारे पढ़ने वाले अमेरिका सेटल हुए। आज मेरा एक दोस्त अमेरिका से इसको अटेंड कर भी रहा है। तो लोग बहुत पैसे कमाए। मैं कहता हूँ मैंने दोस्त कमाए हैं। तो मेरे दोस्त पूरे गुजरात में, पूरे भारत में और पूरी दुनिया में है। आज 70 से अधिक देशों में मेरे दोस्त है और उसकी मुझे खुशी है। तो मुझे लगता है कि मैंने, जो आपका सवाल था कि क्या करता हूँ, तो बस घूमता हूँ। एक कविता और सुना दूँ? तो मैंने हमણાં જે कविता એમાં છેલ્લી પંક્તિ હતી કે જાદુ એવો જાય જડી ગાઈ શકું 2-4 કડી. મેં કડી બી તમને સંભળાવી છે ને ચાહી શકું 2-4 ઘડી. તો ગીત પ્રેમની પૃથ્વીના કણ પટે ધરવા આવ્યો છું, હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું. તો આમાં પ્રેમની વાત છે. રાત દિવસ તો વાલમ નહીં તો છે ને તમે કરી નાખો ને તો થાય નહીં. ध्यान राखो, जे लोग ऑडियो चालू हो बंद कर। तो पश्चिम नी अंदर है આપણે અહીંયા વાલમ બાલમ સજના એવું બધું કહીએ. પશ્ચિમમાં હની કે રાત દિવસનો રસ્તો હની નહીતર ખૂટે કેમ, તમે કરજો પ્રેમની વાતો અમે કરીશું પ્રેમ. સદભાગ્ય અહીંયા મારી એક દીકરી જેનું નામ હની પટેલ છે ઉપસ્થિત છે, એટલે એનો ચહેરો મેં જોયો એટલે કવિતામાં બદલાવ લાવ્યો. તો રાત દિવસનો રસ્તો વાલમ નહીતર ખૂટે કેમ, તમે કરજો પ્રેમની વાતો અમે કરીશું પ્રેમ. તમે રેતી કે હથેળી ઉપર લખો તમારું નામ. અમે છે ને મૃગેશ જેવા પ્રેમમાં પડ્યા હોય ને તો આમ બધું સ્ટાઇલિશ કામકાજ હોય. તમે રેતી કે હથેળી ઉપર લખો તમારું નામ, અમે એટલા ઘેલા ઘાયલ નહીં નામ કે ઠામ. તમને તો કોઈ કારણ, અમને નહીં બાના નહીં વેમ, તમે કરજો પ્રેમની વાતો અમે કરીશું પ્રેમ. તમને ધુમ્મસ ઝાકળવાલા, અમને ઉજળી રાત, અમે તમારા ચરણ ચૂમશું થઈને પારી જાત. અહો આંખથી ગંગા યમુના વહે એમને એમ, તમે કરજો પ્રેમની વાતો અમે કરીશું પ્રેમ. હવે આ પંક્તિમાં છેલ્લે આવી વાત. તમે વાત કરો તો થોડું સારું લાગે. આ દૂરનું આકાશ મને મારું લાગે. વૃક્ષ અને પંખી બે વાતો કરે છે ત્યારે ખીલે છે લીલેલો રંગ. ભમરાના ગુંજનથી જાગી ઉઠે છે ફૂલોની સૂતી સુગંધ. તમે મૂંગા પ્રેમલ, તમે મૂંગા તો જળનું પણ ખારું લાગે. તમે વાત કરો તો થોડું સારું લાગે. આ દૂરનું આકાશ મને મારું લાગે. રોમાંચે રોમાંચે દીવા બળે ને આયખું તો તુલસીનો ક્યારો. તારી તે વાણીમાં પ્રેમલ વહેતો મૂકું છું, હું મારો કાંઠે બાંધેલો જન્મારો. એક નાનું અમથું ફૂલ પણ ન્યારું લાગે.
તમે વાત કરો તો થોડું સારું લાગે. આ દૂરનું આકાશ મને મારું લાગે. ધન્યવાદ. કેમ એટલે તમારી પાસે તો જેટલું આમ વાત કરીએ એટલું ઓછું લાગે સર. હજુ એમ થાય કે તમે આપણે આદર્શોને કેવી રીતે ટકાવી શક્યા, તમને સંઘર્ષ પડ્યો હશે તો એવી વાતો બી સાંભળવાનું મન થાય. પણ જેવી આપની અનુકૂળતા હવે ગળાની ને તબિયતની. હું તો મોજમાં છું, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તમને બધાને અનુકૂળતા હોય તો વાત કરી શકું. એટલે આપણે જેને નીકળવું હોય એને નીકળવાની છૂટ આપીએ એવું કરીએ. હા, વેબિનારનો સમય 21 ને 30 સુધીનો હતો. તે અહીંયા પૂરો થયેલો હું લાયન્સ ક્લબ ઓફ ગાંધીનગર ફેમિના વતી જાહેર કરું છું. તમે મારી સાથે આવ્યા અને મને સાંભળ્યો બદલ આભાર. મમતા વતી આભાર માની લો. આદરણીય સુરેશભાઈ પટેલ આપણા કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા અને આપણને સારી વાતો કરી એ બદલ સુરેશભાઈ પટેલનો આભાર. પતી ગયું કામ પૂરું. હવે જેને જવું હોય જાય. જેને રોકાવું એ રોકાય. અને હું જરા શાયરાના અંદાજમાં કહું. આરતી તમારે જવું હોય તો જાઓ, વેબિનારમાંથી તો જાઓ, તાકાત હોય તો દિલમાંથી જઈને બતાડો. હવે જો બેને એવું કહ્યું મને, મમતા બેને, કે સંઘર્ષની વાત કરો. ના એટલે આદર્શ, આટલો બધો આદર્શ આપણે લઈને ચાલીએ ને જીવનમાં તો અઘરું બહુ પડે. એમ બહુ સતત આપણે આદર્શ સાથે જીવવું સરળ નથી. એમ હું એની સાથે અસહમત છું. હું થોડીક વાત કરું એટલે મજા આવશે. જયારે તમને ખબર હોય ને કે મેલેરિયા થાય ને ત્યારે ટાઢ વાય, તો પછી ટાઢ વાવા માંડે તો તમારે ખુશ થવું જોઈએ, કારણ કે તમને ખબર હતી કે મેલેરિયામાં ટાઢી. એટલે જે સંઘર્ષ એ હવે હું તમને મારા સંઘર્ષની વાત કરું એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે એ મેલેરિયામાં પહેલેથી ખબર હતી તો એ સંઘર્ષ હતો કે એક રોમાંચક કાળ હતો. મેં કંઈ પણ પ્રોજેક્ટ કર્યા ને એ પ્રોજેક્ટમાં ક્યાંક ને ક્યાંક અવરોધો આવ્યા. અવરોધ કરનાર ક્યારેક સત્તા હતી, ક્યારેક સ્થાનિક લોકો હતા, ક્યારેક સ્થાપિત હિતો પણ હતા. રાઈટ? એમાંનો એક કિસ્સો કહું. મેં ગાંધીનગરમાં પ્લાન્ટેશન કરવાનું શરૂ કરેલું વર્ષો પહેલા. મારી દીકરીનો જન્મ થયો ત્યારથી પ્લાન્ટેશન, કે દરેક જન્મ દિવસે તો વૃક્ષો વવાયો જોઈએ. એ માઉન્ટ કાર્મેલમાં ભણવા ગઈ તો જે દિવસે સ્કૂલમાં એડમિશન થયું એ દિવસે ટીચરને પૂછીને 5 ઝાડ વાવ્યા તમે. એ મને કહે કે આને તમે ઉછેરશો કેવી રીતે? મેં કીધું એ તમે મારી પર ચિંતા છોડી દો, થોડા બાળકોને ભેગા કરીને વોટર બેગમાંથી વધેલું પાણી નાખવાનું, એવી રીતે સેટ કર્યું હતું. અને પછી તો એટલા બધા વૃક્ષોમાં બાળકો પાણી નાખતા હતા એટલે 5થી પણ ઘણા બધા વૃક્ષો ઉછરી ગયા. એટલે વૃક્ષ ઉછેરની પ્રવૃત્તિની અંદર હું જ્યાં રહું છું ને ત્યાં સોસાયટીમાં મેં વાવવાના શરૂ કર્યા ઝાડ. હવે કેટલાક લોકોના મનમાં એમ કે આપણે આ ખુલ્લી જગ્યા છે ને તો એની અંદર ગાડી પાર્ક કરીશું, તો રાત્રે મારા વાવેલા ઉપર ગાડી ફેરવી દે એટલે છોડ ચગદાઈ જાય, ઉખાડી નાખે. હવે જો જ્યારે ગાંધીનગરમાં રહીએ ને ત્યારે આપણને એવી ખબર હોય કે ગાંધીનગરમાં કેટલાક મૂર્ખાણામ શિરોમણી રહે છે, જે લોકો ખરેલા પાંદડાને કચરો કહે છે. એ લોકોને જરા પણ અક્કલ નથી કે ખરેલા પાંદડાને કચરો ના કહેવાય, એને ધરતીનું પોષણ કહેવાય, એને ધરતીનું કવર કહેવાય. એ હોય તો પોષક તત્વની વૃદ્ધિથી બીજા વૃક્ષો વધે. આખી લાઈફ ધબકતી હોય છે ખરેલા પાંદડા નીચે. હવે આવા લોકોને ગાડી પાર્ક કરવી હતી, એ લોકોએ વિરોધ શરૂ કર્યો. એકવાર રાત્રે 12 વાગે હું જાગતો બેઠો અને જોયું કે શું થાય છે, અને પકડી પાડે એક ભાઈને. એ ભાઈને કાંઠલેથી પકડીને મેં કરાટે શીખ્યો છું એટલે મેં બ્લોક બતાડ્યો એને, પંચ બતાડ્યો, અને મેં એને કીધું આ એક મારીશ ને તો નાક જે બહાર છે ને અંદર જતું રહેશે, અને અત્યારે કોઈને બી ખબર નહીં પડે. પણ હું એવું નહીં કરું, કારણ કે હું તો ગાંધીજીનો ચેલો છું. જાઓ, મેં તમને માફ કર્યા, પણ ધ્યાન રાખજો હું સહન કરવાવાળો માણસ નથી. રાઈટ? અત્યારે જવા દઉં છું. હવે એકચ્યુઅલી હું સૌથી વધુ સહન કરવાવાળો માણસ છું, પણ મેં અમને એવું કહ્યું એટલે ગાડી પાટે ચડી ગઈ. પછી મેં પ્લાન્ટેશન કર્યું. મમતા તમે તો ઘરે આવે છો, જોયું હશે. એ પ્લાન્ટેશન વધારતા મેં એટલું બધું વધાર્યું. પછી મેં ગુજરાત સરકારને કીધું કે ભૂંડ ઘૂસી જાય છે, ડેમેજ થાય છે, આટલી તારીખ સુધીની અંદર મને કરી આપો ફેન્સની છૂટ, તો હું ફેન્સ કરું. અત્યારે તો થોરની વાડ કરી છે,
સરકાર તો કંઈ જવાબ આપે નહીં, મારી તારીખ જતી રહી એટલે મેં ફેન્સ કરી નાખી. એટલે મારી સોસાયટીના કેટલાક લોકોએ જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ અભિયાન ઉપાડ્યું હતું દબાણ હટાવવાનું, ત્યારે એ દબાણ હટાવવાના અંતર્ગત આ લોકો ભેગા થઈને અરજી કરી કે સુરેશભાઈ બહુ મોટું દબાણ કર્યું છે. એ વખતે એરફોર્સના અધિકારીઓ, સચિવો, IAS અધિકારીઓના બગીચાના દબાણ સરકારે ઉખાડી નાખ્યા હતા અને નરેન્દ્રભાઈને કોઈ ફોન ના કરી શકે, મંત્રીઓના કોઈ ફોન ઉપડે નહીં, એવો સપાટો બોલાવ્યો. મારી આખી સોસાયટી સાફ થઈ ગઈ હતી, પણ મારા પેચને કોઈ અડ્યું નહોતું. એટલે આ લોકોએ અરજી કરી કે સુરેશભાઈને ઉપર સુધી કનેક્શન છે એટલે તમે કરો. એટલે હું એ દિવસોમાં ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ કન્ડક્ટ કરવા ક્યાંય બહાર ગયો હતો, મારા પત્ની ઘરે હતા, તો બધા અધિકારીઓ આવ્યા, બધું જોયું, ફોટા બોટા પાડ્યા, પછી ઘરમાં આવ્યા. એમણે કહ્યું કે તમે જે પ્લાન્ટેશન કર્યું છે એ ગાંધીનગરના ગ્રીન રિઝર્વ એરિયામાં કર્યું છે, એટલે તમે શાબાશીને પાત્ર છો, પણ તમારા વિરુદ્ધ તમારા જ પડોશીઓએ ફરિયાદ કરી છે. એટલે એમણે કહી દીધું કોને ફરિયાદ કરી છે. એટલે પછી મારા પત્ની કહેતો પછી આઈસ્ક્રીમ ખાઓ, કારણ કે તેઓનો તો સ્વભાવ જ છે આવી રીતે ખોટી ફરિયાદો કરવાનો. ત્યાર પછી તો ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટે ગુજરાત મેગેઝિનમાં ફોટા બહાર પાડ્યા કે ફોરેસ્ટ વિભાગનો અદ્ભુત કાર્યક્રમ, એક જ જગ્યાએ બધા જ પ્રકારના રક્ષિત વૃક્ષો પ્રાપ્ત છે. કારણ કે મેં ફેન્સ છે ને લીલા કલરની કરી હતી, જ્યાં કોઈ લીલા કલરનો, એટલે કોઈકને એમ લાગે કે આ તો ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટની નર્સરી છે. હું તો રાજીનો રેડ એટલે કે લાલ લાલ થઈ ગયો. હવે સરકારી ચોપડે ચડી ગયું કે આ તો ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટે કર્યું છે. તો મિત્રો, કહેવાનું તાત્પર્ય, જે દિવસે મેં પ્લાન્ટેશન કરવાનું શરૂ કર્યું તો ટાઉન પ્લાનિંગનો નકશોમાં જોયું આપણે દબાણ તો કરવું જ ના હોય નાગરિક તરીકે, પણ જેટલો ખુલ્લો જગ્યા છે એ લીલો કરવો જોઈએ. એટલે હું ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે ગયો, ત્યાં જઈને કહ્યું મને ઝાડ આપો, વાડ આપો. થોરની વાડ બી ના કરી શકો, તમને કાપવાની પણ મનાય. અને મને કે તમારી સોસાયટીના માણસો તો એટલા ભંગાર છે ને કે અમે કર્યું હતું ને પ્લાન્ટેશન તો વાડ ઉખાડી ગયા, એટલે અમે કશું નહીં કરીએ, તમારે કરવું જ કરો. હવે તમે કલ્પના કરો કે થોરની વાડી કરવી હોય તો થોર તો કાપવા જોઈએ ને, એટલે કેટલો વિરોધ. એટલે મેં પોલીસને ફોન કર્યો કે સાહેબ છે ને હું આવું કામ કરું છું અને મારે મળવું છે, એટલે પોલીસવાળા મને મળવા બોલાવ્યા. કોઈ પરિચય નહીં, મેં સીધી વાત કરી કે નાગરિક છું, સારું કામ કરવું છે, ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટવાળા છે ને થોરની વાડ જઈશ તો મને પકડશે અને સીધા તમને બોલાવશે. એટલે તમને બોલાવે ને તો હું તમને પહેલેથી કહી રાખું છું કે આ જગ્યાએ હું વાડ કરવાનો છું ને હું રાતે કાપવા જઈશ અને પેથાપુર કાપવા જઈશ અને આવી રીતે હું લાવવાનો છું, તો તમે મને મહેરબાની કરીને બચાવી લેજો, કારણ કે તમારે જ મને પકડવાનો થાય. પતી ગયું. મને એમણે કોફી પીવડાવી એ અધિકારીએ કે યાર તમે ગાંધીનગર પર રહો છો, મજા પડી ગઈ. ત્યાર પછી તો કલેક્ટરે મને પહેલો રોપ આપીને વૃક્ષારોપણનો પ્રારંભ બી કરેલો. અને તમને જાણીને આખી આ સ્ટોરીના અંતે સંઘર્ષની પરાકાષ્ઠા કહી દઉં. 18 વર્ષનું ચંદનનું ઝાડ જેમાં ખુશ્બુ આવવાની શરૂ થઈ ગઈ હતી. હવે વૈજ્ઞાનિકો મારે ઘરે આવ્યા, એમણે કહ્યું કે આ ઝાડ હવે તમારે કાપી લેવું જોઈએ, આમાં લગભગ 2-2.5 લાખ રૂપિયાનું ચંદન છે. મેં કીધું હું તો વાવવાવાળો માણસ છું, કાપવા માટે મેં ક્યાં કશું કર્યું છે. અને હું પ્રવાસે ગયો, નવરાત્રિમાં મારું ઘર બંધ હતું, ત્રીજા નોરતે આખું કેવી રીતે કામ કર્યું છે, ફેન્સ કાપીને આખું ઝાડ મૂળ પાસેથી કાપીને ચંદન ચોરો લઈ ગયા. પણ છતાં તમે આજે મારા બગીચામાં આવશો તો આજે પણ 10 ચંદનના ઝાડ બીજા છે જ, કારણ કે અમે સતત વર્ષે વાવતા જ રહ્યા છીએ અને હજી પણ વાવ્યા છીએ. બાકી કહેનારા એવું કહે છે કે પાછી ફેન્સ કોઈક ચંદન ચોરવા માટે તોડશે, હવે તમે ચંદન કાઢી નાખો. એટલે મમતાબેન, સંઘર્ષ તો સતત છે, પણ જ્યારે આપણને એવી ખબર હોય કે આજુબાજુ લોકોની સમજ નથી તો જીસસને યાદ કરવાનું કે હે પ્રભુ એમને માફ કરજે, એમને ખબર નથી એ લોકો શું કરે છે. એટલે ટાઢ આવે તો જરાય વાંધો ના આવે, ખબર હોય કે મેલેરિયામાં તો ટાઢ આવે. એટલે સારા કામો કરવા નીકળીએ તો સારા કામમાં 100 વિઘ્ન એમ કહે છે ને, પણ હું એને વિઘ્ન નથી ગણતો, હું એને પ્રોસેસ ગણું છું. અને એનું મુખ્ય કારણ છે મેં જેટલા પણ ગ્રેટ માણસો વાંચ્યા એમાંથી મને બહુ પ્રેરણા મળી. જેમ કે નેલ્સન મંડેલા, હવે માણસ 28 વર્ષ જેલવાસ, તમે કોઈ પણ લોંગ વોક ટુ ફ્રીડમ વાંચો ને એકવાર તો જિંદગીમાં ફરિયાદ જતી રહે. આપણને તો કંઈ છે જ નહીં એમ લાગે. આજે મને કોરોના થયું, મારી પ્રસન્નતા કેમ અકબંધ છે હું તમને કહું. લોકોને તો કેવા કેવા રોગ થાય છે. આપણને તો ખાલી તાવ આવ્યો, શરદી ઉધરસ જેવું થયું.
લોકો તો કેવા કેવા બીમારીઓથી પીડાય છે. બાહેરે આપણા દુઃખનું કેવડું જોર, નાની અમથી જાતક વાતનો મચવીએ ના શોર. રાજેન્દ્રભાઈની આ અદ્ભુત રચના છે. આખી રચના વાંચીએ તો મજા પડી જાય કે આપણે માની લીધેલા બધા દુઃખો ખરેખર બીજાના દુઃખો સામે કશું જ નથી. એટલે પછી સંઘર્ષ જેવું ના લાગે. એટલે એ અર્થમાં જોઉં તો મલ્ટિપલ પ્રોજેક્ટ્સની અંદર મલ્ટિપલ આવા બધા વાંધાઓ વિરોધો થયા, પણ સરવાળે લોકોએ પણ તારવ્યું અને ધીમે ધીમે પ્રજાની અંદર જ્યાં હું કામ કરતો એ લોકોમાં મારી એક છબી ઊભી થઈ. આજે તમને આનંદ થશે, ટ્રેકિંગનો પ્રોગ્રામ કરું, કેટલી સખત હું ડિસિપ્લિન રાખું. લોકોને સૂચના ગમે નહીં છતાંય સૂચનાઓ આપવાની, રાઈટ. બધી કડકાઈ હોય, મોબાઈલ લઈ લઉં, સિમ કાઢાવી લઉં, તો અત્યારે ટ્રેકિંગની જેવી સૂચના મૂકું ને 40-50 તો થઈ જ જાય. હમણાં તુંગનાથમાં અમારે 60 ઉપર આંકડો પહોંચ્યો હતો. આ તો કોરોનાને કારણે તુંગનાથ અમે રદ કર્યું, પણ ત્યાં જ્યાં બધું બુકિંગ છે ત્યાં બધા લોકો કહે કે તમે તો આખું વર્ષ ટ્રેકિંગ કર્યું છે, હવે હિમાલય નથી આવવાના. મેં કહ્યું આવવાના છીએ, અત્યારે જુલાઈ રાખો, ત્યાં સુધી બધું સમય સતર થઈ જાય. એટલે એવું છે, રાઈટ. આઈ થિંક આઈ હેવ ગિવન ઇન ડિટેલ. કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો લઈએ, કારણ કે આ તો પછી પ્રવચન જેવું થઈ જાય. સાચી. કોઈ કંઈ પૂછવા માંગતો હોય તો ચોક્કસ પૂછે તો મજા આવે. તો સર પાસેથી ઘણું ભાવેશ અને ઉર્વશી, તમને બેને પ્રસંગ જોઈને બહુ મજા પડી ગઈ અને આરતીબેનને બી ખુશ જોઈને મને ખૂબ ગમ્યું. બોલો મૃગેશ, કંઈ પૂછવું છે? નિમેશ અને બેવનો ઓડિયો ચાલુ હોય તો અવાજ. હા, તમે એક સરસ મેસેજ આપો બધાને, સતત સ્મિત ભર્યા રહેવું હોય તો શું કરવું? એવું કેટલું અદ્ભુત વાત આજે થઈ, મોજની, રોજની અને ખોજની. પણ તોય પાછું 5 મિનિટ પછી બધા હતા ત્યાં ન થઈ જાય અને સતત એ મજા ભર્યા રહેવું, સ્મિત ભર્યા રહેવું તો શું કરવું જોઈએ? એનો મસ્ત મેસેજ આપો. આપી દો. જ્યાં સુધી આપણું ધ્યાન આપણને મળેલી ઉપલબ્ધિઓ ઉપર નથી ને, ત્યાં સુધી હૃદયમાં ગ્રેટિટ્યુડની ફિલિંગ નહીં આવે, કૃતજ્ઞતાનો ભાવ નહીં આવે. અને કૃતજ્ઞતા અને પ્રસન્નતાને સીધો સંબંધ છે. કઈ રીતે નિમેશભાઈ, લોજિક સમજાવો. આપણે મોજ ક્યારે પડે? જ્યારે બધું બરાબર હોય ત્યારે મોજ પડે ને. हम कब खुशी महसूस करते हैं? जब हमें ये लगे कि सब कुछ बराबर है, जो भी है सब कुछ बराबर है, जो भी मेरे को मिला है वो भी बराबर है, जो भी मुझे चाहिए होगा मिल जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान है, जिसका समाधान मेरे पास नहीं है मेरे दोस्त के पास है, क्योंकि मेरे पास दोस्त है. तो इसको मैं एक शब्द में कहूं तो वो है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड. चलो मैं एक जर्नी कराता हूं. अगर ये जर्नी आपने मेरे साथ कर ली तो आप हमेशा खुश रहोगे. हम इस शरीर से जो मौज लेते हैं, भले निरंतर ना भी हो, दिन में 3 बार खाने की मौज लेते हैं, राइट, आंखों से देखने की मौज लेते हैं, ये जो भी मौज लेते हैं उसके लिए हमें शरीर मिला है, और शरीर देने के लिए माता पिता का आभार. अभी सामान्य स्वरूप से निमेश क्या होगा? लोग देखेंगे कि मेरे माता पिता ने मुझे शरीर दिया. मैं जरा रोमांटिक स्वरूप में कहता हूं, मेरे माता पिता को धन्यवाद काफी नहीं है. मेरे पापा के पापा ने शादी की इसलिए मेरे पापा को शरीर मिला. मेरे दादा ने शादी की तो मेरे दादा, उसके परदादा, दादा दादी, दादा दादी, दादा, ऐसा करते जाएंगे तो कितने लोगों की शरीर की परंपरा चलते चलते मुझे शरीर मिला है. अभी बस्ती बढ़ रही है, हम देख ही रहे 1 से 2, राइट. जैसे निमेश और ममता की शादी हुई तो महर्षि और अपूर्वा 2 में से 4 हो गए. अभी ऐसे देखे बैकवर्ड चले तो कितने लोगों को याद करना पड़ेगा. अभी वो कैसे याद करेंगे? जैसे मेरे दादा शिकार करने गए जंगल में हिरण के पीछे. अब वो हिरण को पकड़ने वाले थे, पीछे से लायन ने जंप लगा दिया और पूरा का पूरा बैग फाड़ डाला. अब इसके आसपास जो भी लोग थे उन्होंने 4 महीना तक उनकी सेवा शुश्रूषा की, तब जाके वो बच गए.
वो बच गए, फिर उन्होंने शादी की, तो फिर यहां तक मैं आ गया, पकड़ में आया। तो पूरी की पूरी सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हु वी आर। हमें जो शरीर मिला है उसके लिए पूरी सभ्यता जिम्मेदार है, पूरी ह्यूमैनिटी जिम्मेदार है। अब आप कहोगे वो पुरानों का क्या, अरे आरती को जब देखेंगे तो आरती के दादा को भी तो याद करना पड़ेगा। तो ऐसे सोचना होगा कि मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा जब बीमार थे तो आरती के दादा के दादा के दादा ने मदद की थी, तो अब आरती मेरे सामने है तो मैं इसके प्रति कैसा भाव रखूंगा कि भी आरती मेरी बहन है या भाभी है या दोस्त है या माँ है, बेटी है, ऐसे ही देखूंगा ना। अलग अलग रिलेशनशिप है ही। तो पहले तो कृतज्ञता फॉर द ह्यूमैनिटी, मानवता के प्रति। अभी देखिए, ये नीम का पेड़ ऑक्सीजन नहीं छोड़ता तो मैं क्या इस शरीर को चला सकता? तो नीम का पेड़, पीपल का पेड़, कितने पेड़, जितने भी पेड़ है जहां भी है पूरी दुनिया में, निरंतर ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, और वायुमंडल तो एक ही है। तो आप जहां भी जाओगे सभी जगह प्लांट्स को पाओगे, और अगर अपने अंदर क्लैरिटी है तो नीम को देख के भी खुश होंगे, बबूल को देख के भी खुश होंगे। ममता संघर्ष की बात कर रही है ना, मैंने गार्डनिंग प्लांटेशन शुरू किया तो मैं प्लॉट के सामने जब घर बना रहा था तो मुझे एक ही पेड़ मिला था वारसा में, वो था बबूल का पेड़। तो कॉन्ट्रैक्टर कहने लगा, माली कहने लगा, आई मीन जो खड्डा करने आया था, और मेरी पत्नी भी कहने लगी कि बबूल को निकाल देते हैं। मैंने कहा जब तक हम एक पेड़ नहीं उगा सकते, एक पेड़ निकाल कैसे सकते हैं? कितना विरोध, कोई मेरी सहमति में नहीं। फिर मैंने शर्त रखी, इसके बाजू में शहतूत का पेड़ लगाएंगे, शहतूत बड़ा हो जाए उसके बाद बबूल निकालेंगे। फिर तो मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए। लेकिन कहने का तात्पर्य पूरी वनस्पति जगत के प्रति कृतज्ञता। अब देखिए, मैं मेरी एक दोस्त की पहचान कराता हूँ। ममता, जब मेरा गला खराब हो जाता है तो मैं मधु यानी कि हनी के साथ हल्दी मिक्स करके चाटता हूँ, और नॉर्मल खांसी में मैं उसके अंदर मरी डालता हूँ। यह आयुर्वेदिक उपचार है। मुझे हनी प्राप्त कराने के लिए हनी भी अहमदाबाद से कलकत्ता तक की यात्रा, पूरी शरीर यात्रा में 8 बार करती है। इतना ट्रैवल एक मधुमक्खी करती है। कैन यू इमेजिन? जंगलों में ट्रैक करते समय मक्खी काट लेने तो मैं रोता चिल्लाता नहीं हूं, मैं कहता हूं इट इज अ लविंग किस। वो तो कहने आई थी, याद है ना सुरेश, भूल तो नहीं गया ना? कितने अरबों खरबों सालों से मैं हनी इकट्ठा कर रही हूँ। तो ऐसे देखेंगे, पोलिनेशन के बिना हमारी थाली में ना तो गेहूं आएगा, ना बाजरा आएगा, ना कोई फल आएगा। तो छोटे छोटे जीव जंतु के प्रति भी कृतज्ञता। अच्छा, बिना पानी पिए चलता है क्या? तो पानी तो मैटर है, पदार्थ, मैं पी लूं। हवा, पानी, पृथ्वी के अंदर का सभी प्रकार के केमिकल्स। तो ऐसे देखेंगे तो जितना मटेरियल ऑर्डर है उसके प्रति कृतज्ञता, प्लांट ऑर्डर है उसके प्रति कृतज्ञता, एनिमल ऑर्डर है उसके प्रति कृतज्ञता, इंसान के प्रति कृतज्ञता, और ईश्वर भगवान जिसको भी आप मानते हो, मेरे लिए तो नियम ही भगवान है। ये इतनी अद्भुत सजावट जो है, कोई इसको समझना चाहे तो मैं आमंत्रित करता हूँ। इसको कहते हैं जीवन विद्या शिविर। कोई शुल्क नहीं होता, 8 दिन आपको रेसिडेंशियल करना है, और अगर आपके पास अभी समय है पूरा तो आप 40 घंटे का अपने घर बैठे डेली 1-1 घंटा देखिए, ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो इससे पूरा समझ में आता है कि पूरा इतना अद्भुत सजावट कैसे है। तो ईश्वर तत्व भी समझ में आ गया।